Thank you very much, sir. Now we proceed to the first session of this training program. Professor Dr. Mahmood. Dr. Nasir Mahmood is currently serving as Dean, Faculty of Education, Allama Iqbal Open University, Islamabad. He has completed his PhD in Education Psychology from Japan. And he is also a postdoc fellow of University from University of Leeds, UK. Now I would request Dr. Nasir Mahmood to please start. Over to Dr. Saab. Thank you very much, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब. Thank you. Assalamu alaikum to everyone who has joined us online for this session. और slides जो हैं, if all of you can see the slides. Yes, sir. आपके slides are visible है, sir. Visible. That's good. चलें जी. Thank you. अच्छा जी. हम सबके पास ही will have, as you already heard from the chairperson, that in our purpose for today's session is to talk about transformation of teachers from face-to-face teaching to online teaching. This is the primary subject of what we'll be talking in coming 1.5 hours. Lekin to start with, I would like to emphasize, as we already know, the hype of all this thing, which is conversion from face-to-face teaching to online teaching, came with this COVID-19 जो issue था, problem था. With that, it all came up. It is not that we were trying to shift our higher education across the world to online education or digitalizing it. ये जो function था, that was not primarily limited to this COVID-19. इससे पहले से ही चल रहा था. But COVID-19 worked as a catalyst and really emphasized upon us that how important is it for all of us to make this shift more swiftly and more quickly. और इससे हमें बहरहाल we were all pushed to get into it, particularly our teachers who worked really very hard in the beginning when everybody was simply asked to do it online when they were actually not prepared to do it online. And many of us first time in our life had tried to do that. At the moment, हमने पिछले 4-5 महीनों में we have learned a lot in this regard. All of us, as institutions and as individuals. And then on policy side of it, the government and Higher Education Commission both have realized, and they are in the process of developing mechanisms to recognize this education as a legitimate way of teaching and learning. जो कि इससे पहले जो था वो Higher Education Commission और other government policies जो थी, they were also reluctant to really accept online education as equal to face-to-face formal education. But now we all realize कि ये भी एक important हिस्सा है and we have to live with it. As Dr. Fazal Saab just mentioned, this is now a new normal for us. So what we'll do in this 1.5 hours is I'll spend few minutes on giving you the background of different forms of online education and our transition, a very short description of how this transition took place. कि हम online education पे किस तरह से shift हुए और traditionally ये किस शक्ल में थी. Then we'll talk about some platforms available to us, जिनको आप learning management systems कहते हैं. We'll talk about them, कि how these learning management systems can be utilized, and what we are doing today is how closer to what we call as online education. हमने जो अभी पिछले 3-4 महीने में किया, was it actually online education or not? And then if it is not, then what kind of changes we need to bring into it in order to make it an online education. इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, and then I'll come to the
to the part where I would like to share with you the components of online courses. When somebody asks me to develop an online course, so what actually is expected of me, and all of us have to do it now. जो हमने अब आने वाले दिन है, हम सबको ये ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं ये डेवलप करने पड़ेंगे. तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं, व्हाट हाउ कैन वन डेवलप दोज कंपोनेंट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ कोर्सेज. ये जो 3-4 कंपोनेंट्स हम देखेंगे. And then final part of it, which actually is the focus of all this talk today, that how to become an online teacher. आज मैं फेस टू फेस में पढ़ाता हूँ, कल से आप मुझे कहते हैं कि you will be teaching an online class. तो what kind of changes as an individual teacher I have to bring in myself in order to become an equally successful online teacher. तो इसमें हम आखिर में बात करेंगे. So let's start this. We have already talked about the background जो था इसके लिए, and that an important thing about it today's talk is कि देखिए, this all is geared towards a person who is not very well versed with the use of technology. मेरी गुफ्तगू में कोई भी ऐसी बात नहीं. My other colleagues who will be talking to you in other sessions, they will be talking about the requirements on the technology side, connectivity issues, student participation, ethics of all that work. वो इस पर बात करेंगे आपसे. मेरा टॉपिक जो है, it has nothing to do with the technology component of it. ठीक है, हार्डवेयर किस तरह का चाहिए, ऑनलाइन कनेक्टिविटी कैसी चाहिए, आपके पास मशीन कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें हम नहीं करेंगे. We'll be talking about all that from pedagogical perspective. जो टीचिंग का पर्सपेक्टिव है ना, उसके लिहाज से हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसी पे फोकस भी रहने की कोशिश करेंगे. ये हम बात कर चुके हैं. बिफोर मूविंग अहेड, ये दो तीन लफ्ज़ हैं जो मैं बार बार इसके बाद यूज़ करूँगा, एंड ताकि हम सब वी शुड बी ऑन द सेम पेज. सो मैं आपसे थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है. We'll be using this word learning management system. आजकल के दिनों में आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा इसके बारे में. This is basically about a software. ये learning management system जो है, ये basically software solutions हैं, और जिनको आज हम यूज़ करते हैं ये कह के कि ये LMS हैं, उनमें से बहुत सारे LMS नहीं हैं, learning management systems नहीं. For example, ये Teams जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये learning management system नहीं है, ये meeting software है. इसी तरह आपने बहुत ज़्यादा इन दिनों में हमने यूज़ किया Zoom को, हमने यूज़ किया Google Meet को. तो ये सारे जो हैं ये मीटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं. अब मीटिंग का सॉफ्टवेयर और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दो अलहदा चीज़ें होती हैं, इनकी अपनी अपनी पर्पसेस हैं, और पर्पस में मेन फ़र्क जो है वो ये कि देखें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली इज़ नॉट सिंपली दैट आई विल स्विच ऑन माई लैपटॉप और मैं इंटरनेट फैसिलिटी होगी एंड आई विल गेट कनेक्ट टू माय स्टूडेंट्स और मैं उनके साथ गुफ्तगू ऐसे शुरू कर लूँ जैसे हम आपस में भी गुफ्तगू कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे लिमिटेड इतना सा नहीं होता. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप उनके साथ लर्निंग मटेरियल्स शेयर कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर. आप उनके इम्तिहान ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, आप ग्रुप वर्क मैनेज कर सकते हैं, आप डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी तरह से जिस तरह से आप फेस टू फेस क्लासरूम में करते हैं वैसे ही आप इस पे भी कर सकते हैं. आप डिस्कशंस और टू वे इंटरेक्शन उनके साथ कर सकते हैं सिस्टम के अंदर. सो ये जो ऐसे एक जस्ट टू स्टार्ट विद आसान सी बात के तौर पे मैं ये कहूँ कि ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बुनियादी तौर पे एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, बिल्कुल उसी एनालॉजी पे जिस पे हम फेस टू फेस टीचिंग करते हैं. तो इनके बारे में हम आगे गुफ्तगू करेंगे. इसी तरह फेस टू फेस टीचिंग में जब मैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मेरे पास एक कोर्स आउटलाइन होती है जिसके में, या कोई किताब होती है जिसके चैप्टर्स होते हैं. यहाँ पे ये उनको मॉड्यूल्स कहते हैं. चैप्टर्स को या यूनिट्स की बजाय ऑनलाइन लर्निंग में उसका नाम मॉड्यूल रखा होता है. ऑलमोस्ट एक ही तरह की चीज़ है. मॉड्यूल रिलेटिवली कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है बनिस्बत चैप्टर के. इसमें सिर्फ और सिर्फ वो एक रिटन कंटेंट नहीं होता बल्कि उस कंटेंट की सपोर्ट के लिए मल्टीपल मीन्स होते हैं. सो इस पे भी हम, ये लफ्ज़ भी आगे आएगा, तो जब भी आए आप इसको जस्ट टू कीप
इट्स सिंपल फॉर यू, और इसको एनालॉजी रखने के लिए आप कह सकते हैं कि ये चैप्टर का मुतबादल है। इसी तरह फिर ये एक लफ्ज आएगा सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। अच्छा, सिंक्रोनस से मुराद ऐसी कम्युनिकेशन है जिस तरह से हम अभी कर रहे हैं, रन टाइम पे एक साइड पे मैं बैठा हूँ, दूसरे एंड पे आप हैं, और हम एक सेम टाइम एंड स्पेस में कनेक्टेड है। यानी मैं इधर गुफ्तगू करता हूँ तो ये कोई 2-3-4 सेकंड के लैब से अगर कनेक्शन हमारा दुरुस्त हो तो 3-4 सेकंड के लैब से ये आवाज़ आप तक पहुँच जाती है। और इसी तरह अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो वो मुझ तक भी उसी तरह से कोई 3-4 सेकंड्स के लैब से मुझे भी सुनाई देता है। ये जो है इसको यानी एक ही टाइम एंड स्पेस में एक दूसरे से बात करना, ये सिंक्रोनस कहलाता है। और एसिंक्रोनस जो है वो जैसे आपने ये मूडल वगैरह देखे, सॉरी ये जो मूक्स वगैरह के कोर्सेज हैं ये देखे होंगे, जिसमें जैसे यूट्यूब पे भी हैं, लोगों ने रिकॉर्डिंग करके अपने लेक्चर्स रखे हुए हैं, जिसको सुनना होता है वो अपनी फैसिलिटी के मुताबिक यूट्यूब पे जाता है और लेक्चर को सुन लेता है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन रखा हुआ है, और स्टूडेंट और टीचर एक ही स्पेस और टाइम की नहीं बल्कि अपने अपने स्पेस और टाइम में जब उन्हें ज़रूरत होती है वो जाके उसको एक्सेस करते और सुन लेते हैं। सो उसमें कोई लाइव कम्युनिकेशन नहीं होती बल्कि रिकॉर्डेड मटेरियल के ज़रिए से कम्युनिकेशन होती है। सो हम इस वक्त जिस मोड में बैठे हैं ये सिंक्रोनस कहलाता है। सो इसके बारे में भी आगे हम गुफ्तगू करेंगे, ये जनरल सी टर्मिनोलॉजी है। अब चंद मिनट जो है ना, लेट्स स्पेंड ऑन दिस व्हाट वी मीन बाय एन एक्चुअली ऑनलाइन कोर्स। इसकी स्टोरी शुरू कब हुई थी? आपने डिस्टेंस लर्निंग का नाम सुना होगा, ये जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी करती है ये डिस्टेंस लर्निंग है, जिस तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से ओपन यूनिवर्सिटी ब्रिटिश में है, यूके ओपन यूनिवर्सिटी, और भी दुनिया में बेशुमार ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, या बल्कि ऑनलाइन तो अब हुए हैं, इससे पहले ये पोस्ट के ज़रिए से काम करते होंगे। और बहुत सारे लोगों को वास्ता पड़ा होगा, जैसे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की दावा एकेडमी इस्लाम पे कुरान पे कोर्सेज बजरिए डाक करवाती थी। ओपन यूनिवर्सिटी जो लिटरेसी रिलेटेड कोर्सेज हैं जैसे मैट्रिक हो गया, एफए हो गया, या इससे भी पीछे के 8th क्लास तक के कोर्सेज डिस्टेंस लर्निंग पे यानी कुछ मटेरियल बाय पोस्ट भेजते थे, और वो वहाँ से स्टूडेंट भी बाय पोस्ट ही उसके अंदर अपने जवाबात लिख के सवालों के तो वो वापस पोस्ट कर देता था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी इसमें नहीं होता था, जिसको हम आजकल टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंटरनेट और कंप्यूटर्स। तो इसके बगैर ये चला था सिस्टम बहुत पुराना। ये 1974 में ये पाकिस्तान में भी ये मोड जो था डिस्टेंस लर्निंग का ये इंट्रोड्यूस हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बढ़ गया और टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पे ये जो इंटरनेट वाली रेवोल्यूशन है ये ज़्यादा आने लगी, लोगों ने ईमेल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया और ऑनलाइन वेब पेजेस बनने लगे, तो फिर थोड़ा सा शिफ्ट हमने ये किया कि वी स्टार्टेड यूजिंग दीज ऑनलाइन रिसोर्सेज, या जिसको वेब रिसोर्सेज कहते हैं, ये इस्तेमाल। बट प्राइमरीली टीचिंग वाज स्टिल फेस टू फेस, या डिस्टेंस भी थी या फेस टू फेस थी। सो उसी टीचिंग के अंदर अब हम मसलन मैं क्लास में पढ़ाने जाता था तो फेस टू फेस में पढ़ाते हुए मैं लोगों से कहता था कि अच्छा आपको इस चीज़ के बारे में मज़ीद पढ़ना हो तो यू कैन गो टू द website ABC, and there you can find some material and you can read it from there. Instead of giving them notes, I started giving them references to different web pages where they can find material of their own choice, or they can read it, just go through it. So abhi bhi primarily it was face to face, but as a secondary support to this face to face teaching we started using internet. और ये जो percentages साथ एक कॉलम में आ रहे हैं, they're not very rigid and fixed kind of thing. This is just to give you an idea कि हमने जो है वो थोड़ा सा इस्तेमाल बढ़ा दिया ऑनलाइन टीचिंग का, अबाउट 20-25% के करीब हमने ऑनलाइन सपोर्ट शुरू कर दी। देन ग्रेजुअली वी शिफ्टेड मोर ऑन इट। जब इसके बाद एक दौर जिसको आजकल हम कहते हैं, इस कोविड से पहले वाला जो ज़माना है, इसमें ज़्यादातर अब ब्लेंडेड कोर्सेज जो हैं वो आते हैं, हाइब्रिड या ब्लेंडेड आप कह लीजिए। इसमें भी अभी भी बुनियादी तौर पे टीचिंग का एक कंपोनेंट जो है वो ऑनलाइन होता है और एक कंपोनेंट फेस टू फेस होता है।
लेकिन अब ज़्यादा कंपोनेंट इसमें हम ऑनलाइन करना शुरू हो गए थे। अभी भी फेस टू फेस वाला कंपोनेंट मौजूद था। इसको अगर आप एज ए मॉडल देखना चाहें तो पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आज भी इस मॉडल की एग्जांपल है। एक स्टूडेंट कोर्स में इनरोल करता है, इनरोल करने के बाद सारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसको भेज दिया जाता है। आजकल हम उसको ऑनलाइन भेज देते हैं, एक्सेस दे देते हैं, उसका एक लॉगिन पास आईडी बना देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, और वो उस हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे जाके उस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इससे चंद साल पहले तक वी यूज्ड टू सेंड देम एवरीथिंग बाय पोस्ट। तमाम किताबें प्रिंट होती थी और प्रिंटेड मटेरियल उनके घरों पे भेज दिया जाता। इसके साथ साथ उन्हें फॉर एवरी कोर्स इन विच दे आर रजिस्टर्ड, उन्हें कुछ देर के लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ता था, हर कोर्स के लिए, एक हफ्ते के लिए या कुछ टाइम के लिए, जहाँ पे उनकी फेस टू फेस क्लासेस हुआ करती थी टीचर्स के साथ। इसको आप ये ब्लेंडेड कहते हैं। ब्लेंड का मतलब यही है कि ये फेस टू फेस और ऑफलाइन का एक ब्लेंड होता है लर्निंग का। यानी आप कुछ हिस्सा आके करते हैं, कुछ आपको घर पे करने के लिए मिल जाता है इंडिपेंडेंटली। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले गए, पर्टिकुलरली इन कोविड-19 के दिनों में, जब हमें जो फेस टू फेस वाला कंपोनेंट है ये करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा, तो हमने 100% ऑलमोस्ट ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ये है कि स्टूडेंट और टीचर कभी भी एक दूसरे से इन कांटेक्ट नहीं होंगे फेस टू फेस। आप एनरोल हो जाएंगे और हमारा पूरे का पूरा कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी मीडियम के ज़रिए से होगा जिस पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का और टीचर का फेस टू फेस राब्ता ज़ीरो होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। उन्होंने एक सबके लिए एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बना रखा है और उसके ऊपर ही स्टूडेंट हमेशा से रहता है। सो इसका मतलब है प्रैक्टिकली स्पीकिंग स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं आता। और इस तरह से उसका टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस, उसकी असेसमेंट का प्रोसेस, उसको लर्निंग सपोर्ट का प्रोसेस, ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। ठीक है। सो ये तकरीबन 4 के करीब मॉडल बनते हैं जो इस वक्त भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। आहिस्ते नाउ टुडे व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज ऑल ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। हम आज ऑनलाइन की गुफ्तगू सिर्फ करेंगे, जिसके अंदर यानी टिपिकली हम ये कह रहे हैं कि कोई फेस टू फेस टीचिंग ना हो, तो देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी नीड टू गो थ्रू इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग कोर्सेज एंड देन इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ दोज कोर्सेज हमें क्या करना पड़ेगा। सो इस पे हम गुफ्तगू अभी करते हैं। उससे पहले ये दो थोड़े से कंपैरिजन है ऑनलाइन और फेस टू फेस का, जस्ट आपके जहन में वो क्वेश्चन रेज करने के लिए जो जनरली दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन पे क्वेश्चंस रेज करती है, और फिर उन क्वेश्चंस की जो एक्चुअल रियलिटी है वो भी आपके सामने रखने के लिए कि क्या इनमें से कितनी बातें जो परसीव्ड गुफ्तगू लोग करते हैं वो कितनी दुरुस्त है और कितनी उसके अंदर अवेयरनेस ना होने की वजह से उसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। मैंने अपने करियर का बहुत सारा हिस्सा जो है ना वो फेस टू फेस टीचिंग में गुजारा है जी। मैं 2015 से पहले तक पंजाब यूनिवर्सिटी में, जैसे आप लोग सारे अपने कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, मैं भी इसी तरह फेस टू फेस टीचिंग करता हूँ। 2015 में मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और फिर मेरा ये इसकी तरफ इंटरेक्शन हुआ, ये जो ब्लेंडेड लर्निंग है और ऑनलाइन लर्निंग है। दुनिया जैसे समझती है बिल्कुल ऐसी ही परसेप्शंस मेरी अपनी भी थी, और अभी भी किसी हद तक रिजर्वेशंस हैं इस सिस्टम के चलने के ऊपर, लेकिन बहुत सारे इसके बारे में जो परसीव्ड नोशंस हैं दे आर ऑल क्वेश्चनेबल, दे नीड डिस्कशन। फॉर एग्जांपल आप देखिए फेस टू फेस में मुझे, ऑनलाइन पे मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ यही होता है जो मैंने अभी कहा कि किसी को नहीं पता कि कौन रजिस्टर हो रहा है, कौन पढ़ रहा है और कौन इम्तिहान दे रहा है। इम्तिहान, ये तमाम क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जी कि ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी में एक बड़ी ख़राबी है। किसी ने
जब से मैं वहाँ गया हूँ ओपन यूनिवर्सिटी में, आज तक ओपन यूनिवर्सिटी के टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे क्वेश्चन नहीं उठाया, बल्कि मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में देखता हूँ तो लोग इसी के बनाए हुए टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो इसका मतलब है उन्हें जितने भी एतराज़ात हैं वो जनरली उनकी राय ये है कि इसके निज़ाम में चेक्स एंड बैलेंसेस कोई नहीं होते इतने ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, दे बोथ आर एनोनिमस टू ईच अदर। ना उसको उनका पता होता है, ना स्टूडेंट को टीचर का पता होता है। जबकि फेस टू फेस में उनका ख्याल है कि ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होती है, जिसमें टीचर नोज एवरी स्टूडेंट, दे इंटरेक्ट ऑन रेगुलर बेसिस। सो उन लोगों का ख्याल ये है कि रोज़ाना इंटरेक्ट करने से, एक दूसरे के सामने होने से जो है इसकी क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करती है ये बात। अब जिस तरह के दौर में, एक ज़माने में शायद ये किसी हद तक दुरुस्त भी होता हो जी, जिस चीज़ में आज हम जहाँ पहुँच गए हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इफ़ आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि एवरी वन ऑफ यू इज़ पार्टिसिपेटिंग एंड लिसनिंग, देयर आर 101 वेज ऑफ डूइंग इट। ठीक है, अभी आप सब बैठे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, इसको ऑन करने के बाद इसको ऑन किया हुआ है और किसी और काम में मसरूफ़ है। अगर मुझे ये चेक करना पड़े तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। एक तो बिल्कुल ऑनलाइन क्लास की तरह, जिसमें स्टूडेंट सामने बैठा होता है और मुझे नहीं पता होता कि ये स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा है या दिमागी तौर पे कहीं और है, तो मैं उसकी तरफ चेहरा करके उससे सवाल करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ, तो मैं उसको क्लासरूम में वापस ले आता हूँ। बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर भी किया जा सकता है। ये पेडागोजिकल साइड है इसकी, क्लास मैनेजमेंट की साइड है इसकी। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर अब ये प्रोविजंस हैं कि अगर कोई शख्स एंटर हुआ है अपनी क्लासरूम में और वो कुछ अर्सा इनएक्टिव रहता है, तो डिवाइस आपको लॉग में ये बता सकती है कि कौन कितनी देर एक्टिव रहा है इसके ऊपर, कौन कितनी देर इसको सुन रहा था, फिजिकली इसके सामने बैठा हुआ था या नहीं बैठा हुआ था, ये भी पता चल जाता है। सो ये जो एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये अब अगर तो अभी भी मैं इसको ही एनोनिमिटी कहता हूँ कि मैं आप सामने नहीं बैठे हुए तो ये एनोनिमस है। अगर तो यही तस्वर है तो फिर तो ऐसे ही है जैसे माजी में था। लेकिन अगर एनोनिमिटी से मुराद ये है कि मैं ये इंश्योर करूं कि आप क्लासरूम में मौजूद हैं और एक्टिवली सुन रहे हैं गुफ्तगू को और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये भी अब करना पॉसिबल हो गया। इसी तरह इसमें ये कहा, जैसे अभी मैंने कहा कि ये स्टैटिक है, बहुत ज़्यादा स्टैटिक से मुराद वही है कि मेरे पास कोई जरिया नहीं है ये इंश्योर करने का कि पार्टिसिपेंट्स एक्टिवली हिस्सा भी लेते हैं कि नहीं लेते। तो अब टेक्नोलॉजी अलाउ करती है कि मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए ना, कि अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करता हूँ और चंद सेकेंड ऑनलाइन होता हूँ और मैं कोई किसी की कोई यूज़ नहीं करता, स्टैटिक छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह की हमारे पास टेक्निक्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग में भी मौजूद है, जहां आप इंश्योर कर सकते हैं कि सामने बैठने वाला शख्स वही है जो रजिस्टर हुआ था, वो कोई ना कोई एक्टिविटी जो आप कह रहे हैं उसके अंदर एंगेज्ड है, उसकी मशीन आपको बताती है कि वो एंगेज्ड है कि नहीं। सो इसका स्टैटिक होना पहले जैसा नहीं रह गया हुआ। स्टूडेंट्स जो हैं, ये एक फ़र्क अब भी मौजूद है कि जब आप ऑनलाइन टीचिंग में आते हैं तो स्टूडेंट्स को सेल्फ रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होना पड़ता है। द रीज़न इज़ के क्लासरूम में मैं क्लास के साथ पाबंद होता हूँ, फेस टू फेस मॉडल में, कि मैं क्लास के साथ पाबंद हूँ, एक्टिविटीज़ का एक फ़्लो चल रहा होता है और उस फ्लो का मैं हिस्सा होता हूँ, उसे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मैंने कंप्लीट करना होता है। ऑनलाइन टीचिंग में स्टूडेंट का सेल्फ रेगुलेट होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं जो कुछ आपके सामने करूँगा, आप अपने अपने अवेलेबल टाइम में उसको पूरा करना होगा आपको। सो आपको वो जो एक फीलिंग, एक प्रेशर ऑफ पीयर्स होता है ना, कि जो आपको लेके चलता है, वो प्रेशर ऑफ पीयर्स अब आप पे उस शक्ल में नहीं होता। अब वो पीयर प्रेशर की बजाय वो टाइमलाइन के प्रेशर्स होते हैं जो ऑनलाइन कोर्स में डेडलाइंस तय की जाती हैं उसके साथ। लेकिन आपके पास इंडिपेंडेंस ज़्यादा होती है कि आप जब चाहें और अपने अवेलेबल टाइम में काम को कर सकते हैं, और ऐसा वही आदमी सक्सेसफुली कर सकता है
जो ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटेड होता है, क्योंकि कहीं से उस तरह का प्रेशर नहीं बिल्डअप हो रहा होता। एक जो करेक्ट परसेप्शन इसके बारे में पाया जाता है ना जी ऑनलाइन इशू में, कि आपने भी, अब सब ने थोड़ा बहुत करके देख लिया होगा, आई फील मीन with different extents of involvement, many of us has experienced that in previous couple of months, कि how online teaching goes. So the workload of faculty has increased a lot. मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल से बताऊं कि इन महीनों में जो मैंने कोर्सेज अपने एमफिल या पीएचडी की क्लास के लिए ऑनलाइन, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यही था कि वो बातें जो मैं फेस टू फेस क्लास में खड़ा होके एक ही दिन एक्सप्लेन कर देता था सबको, एंड इट टुक क्वाइट लेस टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स टू देम। अब I have to do them repeatedly again and again for every student almost every day. कभी कोई कुछ पूछ लेता है, कभी कोई कुछ पूछ लेता है, फिर मेरा कोई वर्क टाइम नहीं रह गया। My students, if they are doing their study or they're doing some work on my course late night, तो वो at times रात 11 बजे भी मुझे मैसेज कर देते हैं कि फलां काम मैं कर रहा था, ये कैसे होगा, फलां चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, फलां चीज़ मुझे एक्सेसिबल नहीं है। और मेरा वो जो एक वर्क आवर्स वाला कॉन्सेप्ट था ना, कि मैंने एक क्लास 3 घंटे लेनी है, क्लास में खड़ा हूँगा, 3 घंटे पढ़ाऊँगा और आ जाऊँगा, वो वाला कॉन्सेप्ट अब ख़राब हो गया। उसमें अब मेरे पास मैं एक दफ़ा तो वो ऑनलाइन सेशन लेता हूँ, उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने काम दिया होता है, वेन एवर दे हैव देयर टाइम अवेलेबल टू देम, they start doing work and simultaneously they will start throwing question to me through LMS or through my WhatsApp. No, मुझे बार बार आते रहते हैं and I have to respond to them. इसी तरह मेरा लिखने का काम जो है ना वो बहुत इंक्रीज हो गया। यानी पहले मैं जो जुबानी काम कर लिया करता था, now I have to write down each and everything on it. Because I am not standing in front of them, तो I have to prepare material in different forms. पता नहीं चलता कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी शक्ल में मटेरियल जो है ना वो ज़्यादा समझ आता है, तो मुझे मुख्तलिफ शक्लों में सेम मटेरियल को प्रोड्यूस करना पड़ता है फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग। आई ऑलवेज हैव टू बी विजिलेंट अबाउट माय क्वेश्चन बॉक्स, जहाँ पे स्टूडेंट के क्वेश्चन ऑनलाइन आते हैं, सो आई नीड टू बी फ्रीक्वेंटली चेकिंग माय इनबॉक्स कि उसके अंदर किस तरह के सवाल आते हैं। और अगर मैं किसी को बहुत अरसा जवाब नहीं दे पाता, कोई मतलब 8, 10, 15 घंटे गुजर जाते हैं जवाब नहीं देता, तो मेरा जवाब एट टाइम्स मीनिंगलेस भी हो जाता है। बिकॉज जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो दे आर डूइंग देयर वर्क, अगर उसी दौरान उनको जवाब नहीं मिलता तो दोबारा फिर पता नहीं जब जवाब मिलेगा तो how usable that answer is for them, I'm not really sure about it. So I have to make sure that very frequently I keep on checking it. So teaching online is much more demanding in many ways than teaching face to face. So we have to adjust ourselves to this concept with these differences, and some of them are real differences, some of them are perceived differences, some of them are just because people have not experienced online teaching and online learning yet. So because they had a lot of experience of face to face as a student, as a teacher, so they feel comfortable with that. The change from face to face to online is difficult because they have never experienced online teaching. तो लिहाजा वो जो कुछ कह रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा at times relevant नहीं होता। Once they go through this experience, तो they will know कि इसके advantages और इसकी management जो है वो relatively आसान है। अब मैं इससे आगे आपसे बात करूंगा जी कोर्स की डेवलपमेंट पे, लेकिन उससे पहले ये जो प्लेटफॉर्म्स मैंने आपसे कहे थे कि आई विल टॉक अबाउट देम, थोड़ी सी इनकी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जो ऑनलाइन लर्निंग के सिस्टम्स हैं वो ये आपके सामने जो स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं, पॉपुलर सिस्टम्स यही हैं सारे जो मैं आप देख रहे हैं। अच्छा, मैंने सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के वो लिखे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, एंड दे आर वेरी गुड सिस्टम्स। मैं एटलीस्ट इनमें से 2 को इस्तेमाल करता हूँ, आजकल भी कर रहा हूँ। उनमें एक जो फर्स्ट कॉलम में सबसे टॉप पे मूडल लिखा हुआ है ये, और उसके बाद इसी लाइन के एंड पे जो एक कैनवस है, ये 2 सिस्टम मैं इस्तेमाल खुद करता हूँ और पढ़ा चुका हूँ इनके ज़रिए से। तो वेरी कॉम्प्रीहेंसिव, और बाकी भी यकीनन मैंने उनके बारे में सिर्फ पढ़ा है, आई नेवर यूज देम, लेकिन ओपन एडेक्स वगैरह जो है ये ठीक सिस्टम है।
और ये सारे के सारे आपको फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है। इन तमाम में जो कॉमन फीचर्स हैं सारों में हैं विद लिटिल बिट ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशंस। उनमें एक बात जो है वो ये है कि आप इसके ऊपर अपना कोर्स मटेरियल और कोर्स स्केजुलिंग कर सकते हैं। इनके अंदर स्केजुलर्स बने हुए हैं। मैंने फर्ज कर लिए कोर्स ए पढ़ाना है और मेरे पास उस कोर्स ए के लिए लेट्स से के 48 घंटे की टीचिंग के मैंने 16 सेशंस बनाने हैं, 3-3 घंटे का एक सेशन है, या 48 घंटे की टीचिंग है, आपने 48 सेशंस बनाने हैं 1-1 घंटे के। तो आप डे 1 पे स्केड्यूल बना सकते हैं इसके अंदर कि लेक्चर 1 मेरा इन टॉपिक्स पे होगा, इसके रिसोर्स मटेरियल्स ये होंगे, ये फलां तारीख को फलां वक्त से लेके फलां वक्त तक होगा। और फिर इसी स्केड्यूल को सामने रखते हुए जितने लोग उस कोर्स में एनरोल्ड हुए होते हैं उन सारों को ये सिस्टम ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देता है थ्रू देयर गिवन कॉन्टैक्ट्स। वो इनके व्हाट्सएप नंबर्स भी हो सकते हैं, वो इनके ईमेल्स भी हो सकती हैं, इस तरह की कोई भी मीडियम जो आपने वहाँ पूछा हुआ है उनसे, उस पे जो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उस गिवन नंबर पे या उस कॉन्टैक्ट पे उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अच्छा, स्केजुलिंग कर दी मैंने। स्केजुलिंग के बाद मैं हर एक लेक्चर के लिए डिफरेंट शक्लों में कोर्स मटेरियल इस पे रख सकता हूँ। डिफरेंट शक्लों से मेरी मुराद है वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, ग्राफिक्स की शक्ल में, पिक्चर्स की शक्ल में, वर्ड फाइल की शक्ल में, गूगल डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में, किसी भी तरह से मैं अपना मटेरियल जो है वो उस पर अपलोड कर सकता हूँ। और मल्टीपल फॉर्म्स, मैं चाहूँ तो इन सारी शक्लों को एट ए टाइम भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इन ऑल फॉर्म्स में। सो स्केजुलिंग हो गई, कोर्स मटेरियल हो गया, उस हर सेशन से रिलेटेड जो सेशनल असेसमेंट टास्क मैं करना चाहता हूँ, जिसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क कहते हैं, वो टास्क भी मैं बना के रख सकता हूँ इसके ऊपर। इसके अलावा मैं अगर किसी सेशन में ग्रुप वर्क करवाना चाहता हूँ तो उसके ग्रुप्स फॉर्म कर सकता हूँ, जो बिल्कुल मेरे फेस टू फेस क्लासरूम की तरह ग्रुप्स बनेंगे और वो तमाम स्टूडेंट अपने अपने वर्चुअल जोन में काम करेंगे और मैं एज ए टीचर हर वक्त उन वर्चुअल जोन्स के अंदर किसी भी जोन में एंटर होकर उनसे गुफ्तगू कर सकता हूँ, उनके काम को देख सकता हूँ। सो बेसिकली आप यूँ समझ लें कि इन LMS में बुनियादी जो यूनिट है वो स्केजुलिंग का है। स्केजुलिंग के बाद नंबर ऑफ सेशंस डिसाइड हो गए तो आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप कर सकते हैं या ऑलरेडी डेवलप्ड मटेरियल उस पर अपलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ शक्लों में। स्टूडेंट की असेसमेंट का सिस्टम डिवाइस कर सकते हैं, असेसमेंट की डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, उनमें से एक को या एक से ज़्यादा को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक बुनियादी तौर पे पूरा एक क्लासरूम का मैकेनिज्म है। अच्छा, ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं ये जनरली स्पीकिंग एक टीचर के इस्तेमाल के लिए नहीं बने होते, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बने होते हैं। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 प्रोग्राम्स चलते हैं, हर प्रोग्राम में 5-5 कोर्सेज हैं, हर कोर्स का एक अलहदा टीचर है, तो ये उस पूरे सिस्टम की स्केजुलिंग करने में आपको हेल्प करता है। कोर्सेज ताकि आपस में क्लैश ना करते हों, एक ग्रुप के स्टूडेंट दूसरे ग्रुप में ना जा सकते हों, इस तरह की प्रोविजंस इनके अंदर मौजूद होती हैं। सो ये मेरा इनको जानना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से जिसको पिक कर लेगी वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे उसके पैरामीटर्स जो इस्तेमाल करने हैं वो डिफ़ाइन करेगी और एज ए टीचर मुझे एक्सेस दे देगी उस हिस्से तक जो हिस्सा मुझसे मुतल्लिक है और मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये जो नीचे वेबसाइट मैंने लिखी हुई है, ये वेबसाइट एक्चुअली है जहाँ पे आप जाके इसके बारे में फर्दर डिटेल्स जो है वो पढ़ सकते हैं कि इनमें से हर सिस्टम के अंदर, हर LMS के अंदर कौन कौन सी प्रोविजंस हैं। आप डाउनलोड करके अगर अपने सिस्टम पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहें तो आपके सिस्टम में क्या प्रोविजंस होनी चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर इनमें से आपको कौन कौन सी सहूलत दे सकता है। सो ये मैंने जानबूझ के फ्री वाले लिखे हुए हैं, अदरवाइज एक जो बहुत आजकल दुनिया में मशहूर है ब्लैक बोर्ड के नाम से है, वो पेड है और ख़ासा एक्सपेंसिव है, तो हम अभी इसको क्योंकि ख़रीद नहीं सकते, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये प्रोविजंस नहीं है, तो मूडल वगैरह जो हैं या कैनवस हो गया, ओपन एडेक्स हो गया, ओपन OLAT है, ये सारे जो हैं ये इक्वली ज़बरदस्त सिस्टम्स हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इन LMS के अंदर
अब मैं एज ए टीचर आता हूँ जिसके अंदर, और एज ए टीचर मुझे कहा गया कि आपने एक कोर्स पढ़ाना है ऑनलाइन, तो मुझे कोर्स डेवलप करना होगा। तो उस कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे, मुझे कम से कम क्या चीज़ें डेवलप करनी है, सो दैट आई कैन कॉल इट एन ऑनलाइन कोर्स। जनरली स्पीकिंग व्हेन आई टीच फेस टू फेस, तो मेरे लिए क्या होता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जनरली गिव मी कोर्स आउटलाइन जो कि इदारे ने बनाई होती है, या इवन दे कैन आस्क मी टू डेवलप अ कोर्स आउटलाइन, और वो कोर्स आउटलाइन मैं लेके जाता हूँ, एक टेक्स्ट बुक होती है ज़्यादा केसेस में, एंड देन आई गिव इट टू माय स्टूडेंट्स कि जी ये आपकी कोर्स आउटलाइन है, ये किताब है, एंड आई विल बी गिविंग यू लेक्चर्स ऑन दिस एवरी गिवन टाइम, मैं आपको लेक्चर्स दिया करूँगा। उसके मुकाबले में जब ये मैं कहता हूँ कि मैंने एक ऑनलाइन कोर्स डेवलप करना है, तो उसके अंदर कम से कम ये 4 चीज़ें मुझे ऑनलाइन मीडियम के लिए यानी एलएमएस के लिए ये 4 चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन की जो मैं टेक्निक्स इस्तेमाल करूँगा, कंटेंट की डिलीवरी कैसे होगी, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, टीचर टू स्टूडेंट जो कोलैबोरेशंस हैं वो कैसे बनाई जाएंगी, और फिर ये आखिर में कि स्टूडेंट की असेसमेंट इस कोर्स में कैसे की जाएगी। अब मैं सबसे पहले इस पे कम्युनिकेशंस पे आता हूँ। कॉम्प्लिकेशन जो है किसी भी ऑनलाइन कोर्स में ये नहीं है कि मैं स्टूडेंट से कम्युनिकेट करने की सहूलत कम रखता हूँ ऑनलाइन। मेरे नज़दीक कॉम्प्लिकेशन अब ये होती जा रही है कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर मैं तमाम ऑप्शंस को एक वक्त में खोल देता हूँ, यूज़ करना शुरू कर देता हूँ, तो उनको हैंडल करना मेरे लिए एक चैलेंज होता है। मसलन अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन पे जाइए, तो सबसे सिंपल फॉर्मेट इसका टेलीफोन है जो हम इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट और दूसरा भी, दोनों फोन हैं। फिर लेकिन अब के दौर में अगर मैं आ जाऊं तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, यानी एक वक्त में मल्टीपल लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली थ्रू फोन, थ्रू एनी सॉफ्टवेयर, द वन वी आर राइट नाउ वी आर एंगेज्ड इन। इस तरह के सॉफ्टवेयर भी हैं, ये जो MS टीम्स है, यानी मैं मल्टीपल शक्लों में कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, डिस्कशन बोर्ड्स बना सकता हूँ, अनाउंसमेंट्स कर सकता हूँ अपने कोर्स पेज के ऊपर, ईमेल से इन्फॉर्म कर सकता हूँ, ब्लॉग्स हैं, विकीज हैं, बेशुमार तरह के हैं, ये सारी लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी टूल्स हैं। एज ए टीचर व्हेन डिजाइनिंग अ कोर्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग, I need to know about all possible options and then decide about the limited number of options you are going to use in that particular course. ये सबसे आखिरी बात जो मैंने कही, I feel that is the most important part of it, कि मेरे पास बहुत सारी options हैं, लेकिन मुझे उनमें से कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम और वो वाली ऑप्शंस सिलेक्ट कर लूँ जो मेरे लिए मैनेज करना आसान हो और मेरे पर्पस को सर्व करती हूँ। मसलन अगर मुझे ऑप्शन दी जाए कि आप ईमेल या वेब कॉन्फ्रेंसिंग, और मुझे ये समझ आए कि ये दोनों चीज़ों से मेरा मसला हल हो सकता है, कोर्स की कम्युनिकेशन जो है इन दोनों के ज़रिए की जा सकती है, लेकिन मेरे जिस तरह का इंटरनेट कनेक्शन मेरे स्टूडेंट्स के पास है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग शायद इतनी जितनी बैंडविड्थ मुझे चाहिए उसके लिए शायद वो मेरे स्टूडेंट्स को अवेलेबल ना हो। वेब कॉन्फ्रेंसिंग हालांकि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और बेहतर तरीका है गुफ्तगू का, लेकिन मैं फिर भी चूज़ करूँगा कि मैं ईमेल से कनेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि ईमेल में मुझे ये श्योरिटी तो है कि मेरे स्टूडेंट्स सब के सब इसको एक्सेस कर सकते हैं, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो इसके ज़रिए से उन तक पहुँच जाएगा। पहुँच वो वेब कॉन्फ्रेंस से भी जाएगा, लेकिन मुझे ये डाउट है कि जहाँ जहाँ मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, मुमकिन है कि जिस वक्त मैं वेब कॉन्फ्रेंस करने लगूँ तो उनमें से बहुत सारे कनेक्ट ना कर पाएँ, उनके पास जो नेट की बैंडविड्थ है वो उन्हें अलाउ ना करे डाटा ट्रांसमिशन इस तरीके से जैसे मैं चाहता हूँ। तो लिहाजा वेब कॉन्फ्रेंसिंग को अच्छा समझते हुए भी, एडवांस समझते हुए भी, मैं फिर भी ईमेल पे रहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये श्योरिटी है कि ये मेरे तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली अवेलेबल है। सो दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, कि आप जब भी अपने कोर्स में डिसाइड करना चाहें
तो नंबर ऑफ ऑप्शंस को फिक्स करिए, वरना आपका वर्कलोड इतना हो जाएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। कोई स्टूडेंट आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा होगा, कोई स्टूडेंट आपकी फेसबुक पे पोस्ट कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट आपको जो है वो ईमेल भेज रहा होगा, कोई आपको मैसेज कर रहा होगा फोन पे, और कोई कॉल कर रहा होगा। आप इतने सारे ऑप्शंस खोल के एक वक्त में इनको कैसे मैनेज करेंगे? So this is very important for an online course. In the beginning, you should decide about a very limited number of communication modes which you will be using, and try to choose those which are available to your students easily. And second thing is you don't have to compromise on the extent of communication you are interested in. तो इसको ज़हन में रखते हुए आप इसको डिसाइड करते हैं। दूसरा हिस्सा जो इस कोर्स का होता है ना जी, वो है कंटेंट की डेवलपमेंट। जब मैं फेस टू फेस में पढ़ा रहा होता हूँ तो जनरली स्पीकिंग आई बोरो ऑलरेडी डेवलप्ड कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट बुक और इन द फॉर्म ऑफ माय ओन नोट्स alongside a course outline, and that works for me। ठीक है, जबकि इस मोड में जब आप ऑनलाइन कोर्स डेवलप कर रहे होते हैं तो देयर आर सेवरल कॉपीराइट इश्यूज विच आर इन्वॉल्व्ड। देयर आर, because whatever I use on internet, it goes to the repository, it goes to the record। और जब मैं किसी दूसरे शख्स का बना हुआ मटेरियल यहाँ इस्तेमाल करने लगता हूँ तो मुझे हर तरह की परमिशंस की ज़रूरत होती है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है उसको यूज़ करने के लिए, जो कि एट टाइम्स तो फ्री मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सी दफ़ा मुझे वो ख़रीदने भी पड़ते हैं। और अगर मैं बगैर ख़रीदे इस्तेमाल करता हूँ तो जिनका वो कॉपीराइट होता है वो मेरे से नाराज़ होते हैं। दे कैन सू मी, दे कैन चार्ज मी फॉर एनीथिंग। आहिस्ता आहिस्ता ये इशू अब बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। तो मुझे ऑनलाइन कोर्स में जितना मटेरियल भी चाहिए, either I should be developing it myself or I'll be choosing it from someone else's resource जो उसने कभी बनाया था। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अब मेरे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़नी, तो मैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करूं। फर्ज कर लीजिए मैंने अपनी कोर्स आउटलाइन का टॉपिक 1 पढ़ाना है, तो टॉपिक 1 के लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही किताब हो, एक ही रीडिंग हो। मेरे लिए अब ये आसान है कि मैं एक बेसिक रीडिंग बना लूँ और फिर उस बेसिक रीडिंग के साथ मैं सप्लीमेंट्री मटेरियल्स जो है वो एसोसिएट कर लूँ। उसकी बहुत सारी वजूहात है। पहली सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब मैं क्लास में खड़ा होता हूँ ना, तो आई कैन स्विच वेरी क्विकली टू अ थिंग विच आई फील इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर माई स्टूडेंट्स। मैं बात करना शुरू करता हूँ तो लोगों के चेहरे मुझे बता देते हैं कि उन्हें मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं आसानी से ज़ुबान शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं फ़र्ज़ कर लें अंग्रेज़ी में बोल रहा हूँ तो उर्दू में शिफ्ट हो जाता हूँ। मैं कोई एक किताब पढ़ रहा हूँ तो वो नहीं समझ आ रही तो मैं कोई दूसरा मटेरियल रेफ़र कर देता हूँ, एग्जांपल्स ऐड कर देता हूँ खड़े खड़े वहाँ पे। लेकिन जब मैं ये तमाम रिटन फॉर्म में दे रहा हूँ तो मैं मीडियम को आसानी से नहीं बदल सकता। मैंने फ़र्ज़ कर लीजिए एक इंग्लिश में टाइप मटेरियल रख दिया और अब मेरे स्टूडेंट को उसमें दिक्कत आ रही है, तो मेरे लिए उसको फौरी तौर पे बदलना मुमकिन नहीं है। एट टाइम्स आई विल नॉट इवन बी एबल टू नो कि उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। सो आई नीड टू address this issue by diversifying the kind of material I can put on my web page, on my course page। तो मैं उनको एक तो बुनियादी रीडिंग मटेरियल दे देता हूँ, और यहाँ जब लफ्ज़ रिसोर्सेज हम लिखते हैं तो ये रीडिंग से हटके कैसे है। रिसोर्सेज से मेरी मुराद है कि रिकॉर्डेड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, इस तरह के मटेरियल जो हैं ये रिसोर्सेज कहलाते हैं। सो मैं उसको एक रीडिंग मटेरियल देता हूँ, साथ रिसोर्सेज देता हूँ। ये जो ब्रैकेट में लफ्ज़ लिखा हुआ है मैंने OER है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये बेसिकली ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एक मूवमेंट है जिसमें लोगों ने जो कुछ पढ़ाने के लिए बनाया होता है, दे जस्ट पुट इट ऑन इंटरनेट एंड मेक इट अवेलेबल टू एवरीबॉडी, एंड दिस एक्चुअली डज नॉट हैव एनी कॉपीराइट ऑन इट। किसी ने मटेरियल बनाया अपना पढ़ाने के लिए, वो वेब पे रख दिया और वो OERs में डाल दिया, यानी ओपन रिसोर्सेज में डाल दिया, तो अब उसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे कहीं से इजाज़त नहीं चाहिए।
मैं उसको डाउनलोड करके यूज कर सकता हूँ। सिर्फ मेरे ऊपर शर्त ये है कि जब मैं उसके अंदर कोई चेंज करूँगा या उसको इस्तेमाल कर लूँगा और दोबारा फिर वो OERs में ही डालूँगा, और जो कोई तीसरा इस्तेमाल करना चाहे वो भी मुझे बगैर पूछे उस मटेरियल को इस्तेमाल कर सकता है। सो ट्राई टू गेट दीज रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। इनमें से OERs में से आप नेट पे गूगल पे लिखिएगा ना OERs, तो आपको इसकी वेबसाइट्स और उसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे। कोशिश करें उनमें से आप मटेरियल इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीचिंग के लिए। और फिर एक मटेरियल जो मैंने चूज़ कर लिया, उसी तरह के बेशुमार और मटेरियल पड़े होते हैं इंटरनेट पे, उनको मैं एज ए सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन तमाम को मैं सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ विद ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज। मसलन यूट्यूब के रिसोर्सेज हैं, मैं उनसे इनको सपोर्ट कर सकता हूँ। मसलन मुख्तलिफ डेटा बेसिस हैं अवेलेबल जहाँ से मटेरियल मिल जाता है, मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसके अलावा एक बहुत ही जो हमारे साइंस के कोर्सेज हैं पर्टिकुलरली, जिनके अंदर लेबॉरेटरी वर्क इन्वॉल्व होता है, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता उस लेबॉरेटरी वर्क की रिप्लेसमेंट के तौर पे सिमुलेशंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप देखिए कि अगर किसी ने अब चांद पे जाना हो तो चांद पे कैसा महसूस होता है, ये बात उसको लोग अब सिमुलेशन से सिखाते हैं। जहाज उड़ाना लोग पहले अब सिमुलेशन से सिखाते हैं, ड्राइविंग सिमुलेशन से सिखाते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकली उसको फील्ड में उतारा जाता है। सो ये सिमुलेशन जो होती हैं दे क्वाइट क्लोज टू द नेचुरल एक्सपीरियंसेस। तो आप इनका इस्तेमाल, और ये ऑब्वियसली कोई टीचर खुद नहीं बना सकता, इसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उस पर बनी बनाई जो है इनको इस्तेमाल करें। ये हाईली टेक्निकल जॉब है, आप टीचर मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई खुद इनको डेवलप कर सकता हो। ये पर्टिकुलर लोग हैं जो बनाते हैं, आप बनी बनाई में से यूज़ कर सकते हैं। ख़रीदनी पड़े तो खासी महंगी होती हैं। सो कोर्स मटेरियल में कंटेंट की में ये 3-4 बातें आपको ज़हन में रखनी है कि मल्टीपल मटेरियल्स यूज़ करने हैं, कॉपीराइट जिन पे ना हो वो वाले मटेरियल्स यूज़ करने हैं, सप्लीमेंट्री और बेसिक मटेरियल में डिफ्रेंशिएट करना है। इसके हर टॉपिक के लिए सप्लीमेंट्री और बेसिक रीडिंग्स बतानी है। वीडियो ऑडियो से सपोर्ट कर सकते हैं, सिमुलेशन से सपोर्ट कर सकते हैं। अगली बात जो है वो है जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों की रिजर्वेशंस हैं, वो यही है कि स्टूडेंट और टीचर के दरमियान इंटरेक्शन ऑनलाइन क्लासेस में लोगों को लगता है कि मुश्किल होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भी। कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह सिस्टम से ज़्यादा हमारा इसके साथ यूज टू ना होना है, जिससे हमें लगता है कि ये इंटरेक्टिव नहीं होता। तो इसमें ब्लॉग्स हैं, आप जो कोलैबोरेशन के लिए मतलब इन्हीं सॉफ्टवेयर के अंदर LMS के अंदर ये प्रोविजंस मौजूद होती हैं कि मैंने सेशन 1 बनाया और मैं समझता हूँ कि जो लेक्चर 1 मैंने देना है ये इसमें ग्रुप वर्क करवाना ज़रूरी है लोगों से, या लोगों को कोई प्रोजेक्ट देना ज़रूरी है जिस पे वो 4-4, 5-5 लोग मिल के काम करें। तो मैं उनके लिए उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक अलहदा सेक्शन अंदर वर्चुअल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें वो एक ग्रुप बन जाते हैं जिनके नाम मैं वहाँ डाल देता हूँ। वो सारे मिलके काम करते हैं और फर्ज कर लीजिए कि मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था तो मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टेम्पलेट वहाँ रख देता हूँ। उनमें से जो जिस हिस्से पे काम कर रहा होगा वो उस हिस्से को उसके अंदर फिल करता जाएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इस तरह से ये डिस्कशन बोर्ड्स हैं बनाए जा सकते हैं। मेरे कोर्स पेज के ऊपर साइड पे एक बोर्ड की तरह की चीज़ बनी होती है जिसके ऊपर लोगों को जो पूछना होता है वो सवाल लिखते हैं, उन्हीं में से स्टूडेंट्स जवाब दे सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ एज ए टीचर। सो ये भी एक कोलैबोरेशन की फॉर्म हो जाती है। इसी तरह से ये जो मैंने अभी पहले मिसाल दी थी कि आप एडिटेबल डॉक्यूमेंट रख देते हैं, मैंने फर्ज कर ले 4 लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया तो मैं एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट रख देता हूँ जिसके अंदर आके वो जो जो अपने हिस्से का काम है वो लिखते जाते हैं, तो मुझे पता चलता जाता है कि इनमें से कौन क्या कर रहा है और उसने कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट किया है। इसी तरह स्टोरी डेवलपमेंट, स्टोरी राइटिंग है, ड्रामा लिखना है, कोई इस तरह की क्रिटिक लिखनी है किसी पेपर पे, तो आप उसके लिए ये विकी पेजेस वगैरह इस तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं। सो आपको डिसाइड करना है कि आपके कोर्स के लिए कौन कौन से फॉर्मेट्स ऑफ कोलैबोरेशन जो हैं वो रेलेवेंट है और आप उनको अपने कोर्स में इस्तेमाल करेंगे। किसका क्या इस्तेमाल करेंगे ये आपको अपने कोर्स की डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ता है। चौथी चीज़ है असेसमेंट।
ये भी एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस पे बहुत है कि जी ऑनलाइन जो पेपर्स हम लेते हैं या टेस्ट लेते हैं, जनरली स्पीकिंग हमें नहीं पता होता कि जो एग्ज़ाम दे रहा है वो वही है जो जिसने एनरोल किया था। हमें ये भी नहीं पता होता कि वो कहीं से कॉपी करके जवाब सारे लिख दे तो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हम तो उसको मॉनिटर नहीं कर रहे होते, हम तो सिर्फ एग्ज़ाम भेजते हैं और बच्चे उसके ऊपर करते हैं जैसे उन्होंने काम करना। तो इसका हल ये है कि देखिए, असेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे ये इंश्योर कर सकना कि जो चीज़ मैं इस कोर्स के ज़रिए लर्न करवाना चाह रहा था, स्टूडेंट्स ने वो लर्न कर ली कि नहीं कर ली। लोगों को पास या फेल करना ये टारगेट नहीं रहा कभी भी असेसमेंट का। अनफॉर्चुनेटली हमने ये ओवर द पीरियड बना लिया। फेलियर नाम की कोई चीज़, पर्सनली स्पीकिंग, मैं समझता हूँ कि टीचर की डिक्शनरी में ये लफ्ज़ होना नहीं चाहिए कि स्टूडेंट फेल हो जाता है। ये तो मैं एक तरह से अपने फेलियर को खुद ही एक्सेप्ट करना शुरू करता हूँ शुरू से ही। हाँ, उनकी एक्सटेंट ऑफ सक्सेस में फ़र्क हो सकता है। मैंने कोर्स का मतलब ये है कि मैंने कोर्स के कुछ टारगेट्स तय करने हैं जो हर स्टूडेंट ने अचीव करने हैं। कोई उनमें से ज़्यादा अचीव कर लेगा और कोई कम अचीव कर लेगा। जो कम अचीव कर लेगा उसको एक बॉटम लाइन तक लाना, ये मेरा जॉब है, ये कोर्स का पार्ट है। उसको ये कह के छोड़ देना कि ये यहाँ तक नहीं आ पाया तो इसको अभी पीछे ही छोड़ दूंगा, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो हमारी ट्रेडिशनल असेसमेंट है, जब भी मैं असेसमेंट का नाम लेगा हूँ तो लोगों के जहन में आता है कि एक फाइनल पेपर होगा, 1 साल पढ़ेंगे, हर कोर्स का एक पेपर ले लूंगा तो बस बात खत्म हो गई। अब उस पेपर के अंदर जब मैं फाइनल डे पे लेता हूँ तो बेशुमार फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पाता। उन बेशुमार फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है कि उसको वो नहीं आता था, इस वजह से वो नहीं कर सका। इसके अलावा 99 और फैक्टर्स हैं जो उसको आती हुई चीज़ों को भी उस दिन वो नहीं परफॉर्म कर पाया। मिसाल के तौर पे उस दिन वो मेंटली डिस्टर्ब था। मिसाल के तौर पे उस दिन वो फ़र्ज़ कर लीजिए जिस दिन मैंने इम्तिहान लिया तो जिस शक्ल में मैंने इम्तिहान लिया वो उस फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट के साथ यूज़ टू नहीं था। मतलब मैंने उसको फ़र्ज़ कर लीजिए आते ही आज ऐसे राइटिंग के लिए दे दिया और ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं था। उसने उस स्ट्रक्चर की वजह से जवाब ठीक नहीं दिया और मैंने एलेबोरेट करना शुरू किया कि उसको जवाब नहीं आता था। तो इस तरह की बेशुमार वजूहात हैं जी जो जिसकी वजह से स्टूडेंट नहीं परफॉर्म करता। जब मैं ऑनलाइन असेसमेंट में जाऊंगा तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं मल्टीपल मोड्स ऑफ असेसमेंट को इस्तेमाल करूं और असेसमेंट को एक वन गो में ना करूं। ये एक सेमेस्टर के अक्रॉस चलने वाली एक्टिविटी है जो मुख्तलिफ वक्तों में मैं करता रहता हूं साथ साथ। मसलन मैं हर सेशन के बाद क्विज ले सकता हूं, मैं हर चैप्टर के बाद या हर 5-6 लेक्चर्स के बाद एक टेस्ट बना सकता हूँ, एक प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, कोई एक्टिविटी दे सकता हूँ जिससे मैं असेस करूँ कि इनको काम आता है कि नहीं आता जो मैंने सिखाया। और मैं जब इस तरह के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स एक कोर्स में इस्तेमाल करूँ तो ये इंश्योर करूँ इसके साथ साथ कि उनमें से किसी एक का वेटेज इतना ज़्यादा ना हो जाए कि कोई स्टूडेंट उस एक में फेल हो जाए तो सारे में फेल हो जाए, और किसी एक कंपोनेंट का इतना ज़्यादा वेटेज ना इतना कम वेटेज ना हो कि स्टूडेंट उसको तवज्जो ही ना दे कि यार इसके तो 3 नंबर है, 100 में से नहीं भी करूँगा तो खैर है, इसके बगैर भी मैं पास हो सकता हूँ। यानी एक तो ये कि मल्टीपल फॉर्म्स इस्तेमाल करूँ असेसमेंट के लिए, मल्टीपल तरीके इस्तेमाल करूँ और ज़्यादा थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इनका इस्तेमाल करता रहूँ कोर्स के दौरान। दूसरी चीज़ ये करूँ कि किसी एक कंपोनेंट पे इतनी ज़्यादा तवज्जो ना कर दूँ कि उस एक के करने या ना करने से कोर्स में लोगों के डिसीजन हो जाए उनके पास या फेल होने का, सक्सेस या फेलियर का डिसीजन हो जाए। ये नहीं करना चाहिए मुझे। दूसरी बात, किसी एक कंपोनेंट को इतना कम वेटेज भी ना दूं कि जो मैं उसके ज़रिए मेजर करना चाहता हूँ लोग उस पर तवज्जो ही ना करें, लोग कहें यार इसको छोड़ दो, इसके बगैर भी ठीक है, हमारा कोर्स इसके बगैर भी हो जाता है। सो ये चंद प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर इनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा
तो फिर मैं इसको इस असेसमेंट की क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। वो जो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं असेसमेंट की, वो मैंने आपके सामने स्लाइड पे लिस्ट की हुई हैं। आप लोगों से रिव्यूज़ लिखवा सकते हैं, रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखवा सकते हैं, छोटी असाइनमेंट्स दे सकते हैं, रिपोर्ट्स ले सकते हैं एक्टिविटीज़ की, ओपन बुक एग्जाम बना सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन लाइक एमसीक्यूज एंड सो ऑन ये बना सकते हैं। आप उनसे कुछ सेशनल पेपर लिखवा सकते हैं। और ये 6 मैंने चीज़ें लिखी हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट शक्लें हैं, क्विज जैसे होता है, मैंने नहीं लिखा इसमें, क्विज आप ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़। आपको एक कम्बिनेशन ऑफ असेसमेंट फॉर्म्स यूज करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मुतय्यन करना है और उनकी रिस्पेक्टिव वेटेज का तयन करना है, ताकि एक असेसमेंट जो है ये एक ऑन गोइंग एक्टिविटी बन जाए। तो ये अगर आप इसमें एम्बेड कर लेंगे तो आपके असेसमेंट की क्रेडिबिलिटी और असेसमेंट की जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है इसमें इजाफा होगा, और ये मुझे ऑनलाइन कोर्स में डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो ये कोर्स स्ट्रक्चर के 4 कंपोनेंट्स है जो मैंने आपसे डिस्कस किए, और फिर उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, हर एक के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये आप चीज़ें पूरी करेंगे तो मैं कहूँगा कि आई हैव डेवलप्ड एन ऑनलाइन कोर्स फॉर माय स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कोर्स जब बना दूंगा तो अगला काम है कि मुझे एज ए टीचर अपने अंदर क्या तब्दीली लानी है, जिससे मैं अब एक फेस टू फेस टीचर से ऑनलाइन टीचर बन जाऊं। ये मैंने इस एक क्रॉनिकल छपता है द फ्यूचर ऑफ लर्निंग के नाम से। इसके अंदर ये एक आर्टिकल था कि हाउ कॉलेजेस कैन ट्रांसफॉर्म एजुकेशनल एक्सपीरियंस। अब आप जब ऑनलाइन टीचिंग में आएंगे तो टीचर के रेफरेंस से जो हिस्सा था सिर्फ वो मैंने लिया है, सारा नहीं लिया। अगर मैं आज फेस टू फेस टीचर हूँ और कल मुझे एक ऑनलाइन कोर्स पढ़ाना है तो मुझे क्या चीज़ें अपने अंदर तब्दील करनी होंगी जिसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकूं कि मैं अब ऑनलाइन टीचर बन गया हूँ। अच्छा, और ये सारी वो हैं जिसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं जब भी कहीं जाके गुफ्तगू करता हूँ तो लोगों को जो एंड पे सवालात होते हैं उसमें यही है कि जी कॉलेजेस को हमें ट्रेनिंग करानी चाहिए थी, कॉलेज को हमें कंप्यूटर देना चाहिए था, कॉलेज को कंप्यूटर लैब बनानी चाहिए थी या डाटा सेंटर्स बनाने चाहिए थे, जो ये इन्होंने नहीं किया। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई, वो नहीं, ऐसा नहीं कर रहे, उनको करना चाहिए। ये सब बातें ठीक है, मैं इन तमाम बातों की ज़रूरत को समझता भी हूँ, लेकिन अगर ये ना हो तो क्या मैं टीचिंग छोड़ दूंगा, क्या मैं पढ़ाने का अमल रोक दूंगा? देखिए, मुझे अपने से बाहर रिसोर्सेस मिलते जाएं तो बड़ी अच्छी बात, ना मिले तो टीचिंग मुझे फिर भी करनी है। जो फेस टू फेस टीचिंग मैं अभी करता चला आ रहा हूँ उसके लिए भी सिचुएशन कोई आइडियल नहीं है, उसके लिए भी जो कॉलेजेस में प्रोविजंस होनी चाहिए वो सारी अभी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको मैनेज करता हूँ ना। इसी तरह ये जो ऑनलाइन टीचिंग में मेरी एक्वेंटेंस विद टेक्नोलॉजी है, मेरे पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का आना जो है, ये आइडियली स्पीकिंग मुझे कॉलेज को मुझे प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन अगर कॉलेज नहीं प्रोवाइड करता या अभी इसकी कोई पॉलिसी नहीं है, फंड्स नहीं है, मिल नहीं रहा, तो मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है कि मेरी कोई भी और ट्रेनिंग ना कराई जाए टीचिंग के बारे में, तो फिर भी मैं इस पर शिफ्ट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये 10 पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ऐसे हैं जिसके लिए मुझे किसी भी आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम बातें मेरे पेडागोजिकल स्किल से रिलेटेड हैं और ये वो स्किल्स हैं जो मैं पहले से भी इस्तेमाल करता हूँ, इनकी सिर्फ शक्ल मुझे थोड़ी सी तब्दील करनी है और ये मैं खुद कर सकता हूँ। अब इनको मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ, बजाय इसके कि लिस्ट हम पढ़ें। तो इसमें सबसे पहली जो थी वो है शो अप करना क्लासरूम के अंदर। ये इतना आसान सा पॉइंट है कि इसकी इम्पोर्टेंस लगता है जैसे ये बहुत फॉर ग्रांटेड किस्म की चीज़ होती है, ऐसा है नहीं। जब मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूँ तो मैं क्लास में फिजिकली खड़ा होता हूँ स्टूडेंट्स के सामने, मुझे शो अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस तरह से। रीज़न इज़ के
वो सब मेरे सामने है, और ये एक फॉर ग्रांटेड चीज़ है कि जब भी वो कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे, तो मैं जवाब फौरी तौर पे खुद से दे सकता हूँ। लिहाजा ये आसान था। अब जब मैं अपना कोई कोर्स पेज बनाता हूँ, तो मैं फिजिकली वहाँ पे होने के बावजूद भी उन्हें नज़र नहीं आता, मुझे अपनी प्रेजेंस को शो करना पड़ता है। प्रेजेंस को शो करने का तरीका क्या है कि जब भी मैं कोई कोर्स पेज डेवलप करूं अपना, जिस पे मैंने कोर्स रन करना है किसी एलएमएस में, तो वहां मुझे लोगों के लिए, फर्ज कर लीजिए कोर्स इस महीने की 30 तारीख को शुरू होना है, तो मुझे कुछ 14-15 तारीख से ये शुरू कर देना चाहिए कि इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, इस कोर्स में एडमिशन लेने से फ़ायदा क्या होगा, इस कोर्स को कर लेंगे तो इसको करने के दौरान आपको किस तरह के कामों की ज़रूरत पड़ेगी, इस कोर्स की एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको किस तरह की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपने पास। इस तरह की कोर्स अनाउंसमेंट, हर एलएमएस के अंदर एक कोर्स अनाउंसमेंट की जगह बनी होती है टीचर्स के लिए, तो आप उस कोर्स अनाउंसमेंट वाली जगह पे ये सारी इंफॉर्मेशन फीड करते जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। और इसका एक ही वक्त में लिख के डाल देना यूजफुल नहीं होता। मैंने, क्योंकि लोगों को इंगेज करना है, लोगों को अपनी प्रेजेंस बतानी है कि मैं इस कोर्स में अब एक्टिवली शामिल हो गया हूँ, इसको लॉन्च कर रहा हूँ, तो आप हर रोज़ थोड़े वक्फे के बाद, हर 1-2 दिन के बाद कोई छोटी सी वीडियो पैगाम, कोई रिटर्न मटेरियल, कोई ऑडियो, कोई छोटी सी सिमुलेशन, कोई डॉक्यूमेंट्री बना के आप उसके ऊपर, कोई डेमो बना के उसके ऊपर आप लगा देते हैं, और फिर वेट करते हैं लोगों के रिस्पांस का। और जब आप देखते हैं कि रिस्पांस तो उस पर आ चुका, अब एग्जॉस्ट हो चुका है वो हिस्सा, तो फिर आप नई अनाउंसमेंट डाल देते हैं। एंड यू स्टार्टेड ऑलमोस्ट 10 to 15 days अहेड ऑफ स्टार्टिंग डेट ऑफ द कोर्स, उससे पहले आप इसको शुरू करते हैं। सो ये कोर्स अनाउंसमेंट्स हैं। बेसिक पर्पस ऑफ ऑल दिस इज नॉट सिंपली टू शो योर प्रेजेंस, बट टू enhance the possibility of participation and success of your students। उसके लिए मैं एम करता हूँ। फिर उसके ऊपर आप ऑफिशियली ये भी लिख सकते हैं कि मटेरियल मैं पोस्ट करता रहता हूँ, अनाउंसमेंट्स डालता रहता हूँ, ये आपकी फलां यूटिलाइजेशन के लिए हैं। इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि वी नीड टू हैव अ लाइव चैट और वी नीड टू टॉक लाइव ऑन ऑडियो और वीडियो, तो दीज आर माय ऑनलाइन ऑफिस आवर्स। मैं इतने बजे से इतने बजे तक इसके ऊपर लाइव अवेलेबल हूँगा। अगर किसी को उस दौरान मुझसे कुछ पूछना हो, कोई गुफ्तगू करनी हो, कुछ ऐड करना हो, तो यू कैन फ्रीली डू दैट। यू कैन ओपन अ सजेशन प्लेस देयर, जहाँ पे लोग अपनी सजेशंस लिख सकें कि उनको किस किस तरह से कोर्स अगर पढ़ाया जाए तो उनके लिए आसान होता है। सो आप ये तमाम जो बातें लिखी हुई हैं ये आप करें, तो इससे ये फीलिंग डेवलप होती है कि ये एक लाइव चीज़ है, जो ये कोर्स है ये एक लाइव एंटिटी है और कोई शख्स बैठा हुआ हर वक्त इसको देख रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, खुद उस पर नज़र नहीं आऊँगा, तो लोगों से पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करना प्रॉबेबली ज़्यादती होगी। इसी तरह हमारा जो जनरल ले बैक एटीट्यूड बना हुआ है ना लाइफ में, हम उसको यूज़ नहीं करते थे। तो मसलन मेरे पास कोई ईमेल भी आती है ना, तो मेरा एटीट्यूड ये है कि अच्छा आज तो आई है ना, कल जवाब दे दूंगा, बहुत जल्दी भी करना होगा। यानी मेरे अंदर वो प्रॉम्प्टनेस नहीं है एटीट्यूड के अंदर। बहुत कम लोगों में ये प्रॉम्प्टनेस होती है कि वो रोज़ सुबह आके अपनी ईमेल खोलें और जितनी ईमेल्स आई हैं उनको रिस्पॉन्ड करके तो फिर काम शुरू करें। जनरली मैं देखता हूँ जो मेरे इंटरेस्ट की होती है जवाब दे देता हूँ, जो मेरे इंटरेस्ट की नहीं होती, किसी और के इंटरेस्ट की होती है, तो मैं उस पर इतना तवज्जो ही नहीं करता। ऑनलाइन कोर्स में जब आपने ऑनलाइन टीचर बनना है तो उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमली फीडबैक। कुछ भी सवाल किसी ने पूछा, कमेंट किया, तो आपको अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए एक तो उसके अंदर जो सवाल है उसको रिस्पॉन्ड करना है और बहुत कम टाइम में रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपका रिस्पांस जो है वो स्टूडेंट तक एक शक्ल में जाएगा तो शायद मसला हल नहीं होगा, तो डू इट इन मल्टीपल वेज, आप उसको एड्रेस करिए। सो ये सारे प्रैक्टिस मैं करता हूँ तो मेरा कोर्स ज़्यादा एक्टिव और रादर इन इंटरएक्टिव और ज़्यादा लाइवली कोर्स बनता है। ये बात मुझे फेस टू फेस टीचिंग में नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ जितनी देर मैंने पढ़ाना है मैंने खुद ब खुद क्लास में खड़े होना है, सामने से मेरी प्रेजेंस ऑटोमेटिक होती है।
ये ऑनलाइन में ऑटोमेटिक नहीं है। इसके बाद दूसरी बात जो है ना वो है बी योर सेल्फ। ये जो कैमरा और रिकॉर्डिंग और वीडियो है ना, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप जितने मर्जी भी कॉन्फिडेंट होते हैं, इन द बिगिनिंग आप इस कैमरे की फियर जो होता है ना, ये इंसान पे हावी होता है। ऑनलाइन टीचिंग में मतलब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मुझे ये यकीन है कि ये सारी रिकॉर्ड हो रही हैं। क्लास में जब मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ स्टूडेंट के सामने खड़ा होके, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये फिक्र नहीं होती कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ इनमें से फैक्चुअली कोई गलत भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोई आर्गूमेंट ऐसा चल पड़ेगा जो मैं जनरली नहीं करता लेकिन मुझे उसमें पढ़ना पड़ गया, तो वो बात मैं थोड़ा बहुत कोर्स के उस कंटेंट से हटके भी गुफ्तगू ला लेता हूँ, कभी लतीफ़ा भी सुना लेता हूँ, कभी किसी से कोई लाइटर टोन में गुफ्तगू भी कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो उस वक़्त मैं इन चीज़ों को करते हुए थोड़ा हेजिटेट करता हूँ। अच्छा, इस रवैये से होता ये है कि वो जो मेरा एक नेचुरल स्ट्रेंथ थी ना पढ़ाने की, वो ख़त्म हो जाती है। मसलन अगर मैंने हर 25-30 मिनट के बाद कोई लाइटर सी गुफ्तगू करके, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उनसे लतीफ़े सुनाना चाह रहा हूँ। उसका मतलब ये होता है कि लोगों को एक दफ़ा से मोटिवेट करना, उनकी अटेंशन को वापस हासिल करना, इसके लिए करता हूँ। तो अगर मुझे ये लगता था कि फ़ेस टू फ़ेस टीचिंग में ये बड़ी यूज़फुल बात है, तो ऑनलाइन टीचिंग में क्यों नहीं है? ऑनलाइन टीचिंग में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं हर थोड़ी देर के बाद किसी का माइक ऑन करूँ, किसी का वीडियो ऑन करूँ, उससे गुफ्तगू करूँ, ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो कि वो इंटैक्ट भी है कि नहीं है। बात कर रहा हूँ तो मैं जिस चीज़ पे गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, मैं ऑफ एंड ऑन माइक ऑन करके उससे वो उसी मौजू पे जो गुफ्तगू चल रही है उसकी राय पूछूँ, तो मुझे भी पता चल सकता है कि ये बंदा कितना इन्वॉल्व था। सो बी योरसेल्फ से यहाँ मुराद ये है कि ये जो कैमरा और रिकॉर्डिंग का फियर है इसको छोड़ दीजिए। वट एवर यू आर डूइंग इन योर एक्चुअल क्लासरूम, ट्राई टू डू द सेम हेयर। नो बॉडी कैन जज यू। फर्ज कर लीजिए, मैं कई दफ़ा होता है जब मैं लाइव क्लास में पढ़ाता होता हूँ फेस टू फेस में, तो स्टूडेंट को ऐसी बात कर देते हैं जो मुझे फौरी तौर पे नहीं आती होती, तो मैं कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करके वो वक्त गुजारता हूँ। मुझे उस बात का दुरुस्त नहीं पता होता तो एट टाइम्स मैं उसको एक्सेप्ट करके किसी दूसरे स्टूडेंट के ज़रिए से उस तक जवाब पहुंचाता हूँ। एट टाइम्स मैं उसको सिर्फ मैनिपुलेट कर लेता हूँ कि वक्त गुजरता है, और फिर जब क्लास ख़त्म होती है तो मैं अपने ऑफिस में वापस आता हूँ, तो मैं बैठ के सोचता हूँ कि ये बात जो स्टूडेंट ने कही थी, ये बात ठीक थी, इसका जवाब मुझे क्या होना चाहिए था। मैं पढ़ता हूँ, पूछता हूँ दूसरों से, और फिर मेकअप कर लेता हूँ। आपको अब भी जब आप ऑनलाइन टीचिंग में जाएं तो यही करना है। किसी दिन अगर मुझे मैनिपुलेशन करनी है, फैक्चुअली गलत बात मुझसे हो गई तो उसको बाद में मेकअप करना है, तो ये तमाम नेचुरल बातें हैं, ये हर टीचर की लाइफ में होती हैं और टीचिंग ऐसे ही चलती है। सो लिहाजा मुझे अपने आप को इससे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ ज़िंदा रहना सीखना चाहिए और रिकॉर्डिंग और इन चीज़ों के फियर से नहीं चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मुझे स्टूडेंट्स के साथ जो एक क्या कह रहे हैं, एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो चाहिए होता है उनकी अटेंशन के लिए, उसके लिए मैं जो कुछ करता था वो सब मुझे अपनी ऑनलाइन क्लास में भी करना चाहिए। इस बात को ज़हन से निकालना चाहिए कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ या मुझे परफेक्शनिस्ट बनना है। मुझे एक टीचर की तरह रहना है जैसे मैं पहले रहता था। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे नज़दीक है इस ट्रांजिशन में जो आपको हेल्प कर सकती है, वो ये है कि अब मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं रही कि मैं स्टूडेंट की शक्लों से, उनके नॉन वर्बल क्यूज़ से देख के फैसला कर सकूं कि ये इस वक्त बेजार बैठा हुआ है, ये तवज्जो नहीं दे रहा स्टूडेंट मेरा, या जो मैं बात कह रहा हूँ वो इसके ऊपर से गुजर रही है। ये मैं फेस टू फेस क्लास में उनकी शक्लों से अंदाज़ा लगा लेता हूँ, उनकी हरकतों से अंदाज़ा लगा लेता हूँ। उनके पीछे बैठ के सोने से मुझे समझ आ जाती है कि मेरी बात इसको अब कोई इतनी इसके लिए माने माने खेज नहीं रही कि ये इसको सुने, इसको नींद आ रही है। ये बातें मैं वहाँ आराम से देखता हूँ और अकॉर्डिंगली स्विफ्टली स्विचिंग कर लेता हूँ अपनी चीज़ों की। यहाँ पे जो है नॉन वर्बल क्यूज मैं नहीं देख सकता,
ऑनलाइन टीचिंग में बहुत कम होता है। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है जब हम तरक्की कर दें, तो आज आप जैसे आप सबकी वीडियोस और माइक ऑफ हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा थोड़े सालों में जब हम सबके माइक और शक्लें ऑन होंगी, नज़र आ रही होंगी सामने, तो और हमारा क्लासरूम ठीक चल रहा होगा, तो ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जिस शक्ल में हम चल रहे हैं, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि मैं लोगों की इन बातों को खुद एंटीसिपेट करूं, अपने आप को उनकी जगह रखूं और सोचूं कि अगर मुझे कोई इतनी देर का लेक्चर दे रहा हो, जितनी देर मैं बोल रहा हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटे, तो क्या वो जितनी अच्छी मर्जी गुफ्तगू कर रहा हो, मेरे लिए कितना मुमकिन है उसको तवज्जो से सुनना, और अगर मेरे लिए नहीं है तो मेरे स्टूडेंट के लिए कैसे होगा। अगर मैं अपने लिए इसको इंटरेस्टिंग समझना चाहूँ, बनाना चाहूँ, तो मैं क्या एक्टिविटीज़ करूँगा, वही एक्टिविटीज़ मैं अपनी टीचिंग में करूँ ताकि मेरा स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहे, वो उसके अंदर अपना इंटरेस्ट लूज ना कर दे, अटेंशन उसकी मुझे मिलती रहे। कितनी देर के बाद किससे क्या बात करूँगा तो वो अटेंटिव रहेगा। ये मुझे अपने आप को स्टूडेंट के रोल में डाल के और फिर सोचना चाहिए कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे बिहेव करता, तो वही तमाम काम जो मेरे समझ में आए वो मुझे इस तरह करने चाहिए कि मेरा स्टूडेंट उस क्लास के अंदर इंगेज हो जाए। इसी तरह अपने कोर्स का कंटेंट है, जब मैंने पीछे कोर्स डेवलपमेंट वाली बात की, तो देखिए हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स उसके अंदर देखे, मसलन कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ मोड्स थे, मटेरियल कोर्स मटेरियल की डिफरेंट शक्लें थी, कोलैबोरेशन के डिफरेंट तरीके थे। अब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे स्टूडेंट को समझ आ जाएंगी और इनका अच्छा यूज़र बन जाएगा, ये एक बहुत बड़ी एजम्पशन है। सो मुझे अब अपने कोर्स को अगेन अपने जहन में इंट्यूटिवली ये सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें किस तरह से हों तो उसको नजर आए। मसलन मैंने अपना LMS जो है, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करता हूँ, उसके फीचर्स मुझे पता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट को तो नहीं पता। उसको उसके फीचर्स देखने सुनने में वक्त लगेगा। फर्स्ट टाइम उसको पूरी इंस्ट्रक्शन चाहिए कि फ़र्ज़ कर ले मैं उसे कहता हूँ कि मैंने आपके नोट्स अपलोड कर दिए हैं, मैंने आपकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो क्या कैसे उस पेज को अप्रोच करेगा तो उस वीडियो तक पहुँच जाएगा। और मुझे ज़हन में रखना है कि स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो फर्स्ट टाइम शायद इसको इस्तेमाल करने लगे हैं, तो मुझे अपने कोर्स पेज पे एक ऐसा एक समझ लीजिए डेमो वीडियो डालनी है जिसके अंदर जिसको देख के मुझसे बात किए बगैर स्टूडेंट उस चीज़ तक पहुंच जाए जहां तक मैं उसको चाहता हूं कि वो पहुंचे। सो इस तरह के फीचर्स हैं जो इसके ऊपर बहुत सारे लिखे हुए हैं कि मुझे इस बात को खुद से सोचना है, एज्यूम करना है कि ये कंटेंट किस शक्ल में पड़ा हो, ये पेज के ऊपर ऐसे तरीके से प्लेस किया जाए कि जिसमें से ढूंढना, डाउनलोड करना, एक्सेस करना, देखना स्टूडेंट के लिए आसान से आसान हो जाए, और जिसको मैं आसान से आसान समझता हूँ उसकी भी एक डेमो वहाँ मौजूद हो जिसको स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकता हो। क्लास में खड़े होके मैं आसानी कह सकता हूँ, और जो नहीं कर सकता मैं खुद चला जाता हूँ उसके पास और उसकी किताब को या नोट्स को सीधा करके उसके सामने रख देता हूँ कि तुम इसको ऐसे इस्तेमाल करो। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ उसने आपसे दूर है और खुद करना है। सो इसको ज़हन में रखिए कि ये जो कंटेंट के पॉइंट्स लिखे हैं इन पे मुझे ध्यान देना। इसी तरह अब क्लास में वाइट बोर्ड का यूज़ करना मैं खुद से मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं ऑनलाइन टीचिंग में आता हूँ तो मैं अपना जो कुछ भी मटेरियल शेयर करता हूँ वो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ थ्रू पावर पॉइंट स्लाइड्स, जो हम अभी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे हटके भी मटेरियल हैं वो भी इस्तेमाल है, लेकिन अभी ज़्यादा, और मैं सिर्फ सबसे आसान इसी को ही लेता हूँ कि जी हमने पावर पॉइंट स्लाइड्स इस्तेमाल करनी है। अब मुझे मेरा मकसद जो है वो स्लाइड्स बनाने का ये नहीं होता कि मैंने पूरी की पूरी किताब उठा के स्लाइड्स में डाल देनी है। मेरा मकसद ये है कि जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सामने हों ताकि उन पे डिस्कशन की जा सके और स्टूडेंट की के लिए ये एक रेफरेंस पॉइंट बन जाए कि जब भी उसको ये स्लाइड्स नज़र आए तो उसे ये समझ आ जाए कि हमने बात किस किस चीज़ों पे की थी। आपने देखा होगा कि लोग जब स्लाइड्स बनाते हैं
तो स्लाइड्स के कलर, बैकग्राउंड, उनका फॉन्ट साइज, उसके एक स्लाइड पे कितना कंटेंट आना चाहिए, इसमें इतनी वेरिएशन होती है कि एट टाइम्स वो कंटेंट पढ़ा ही नहीं जाता, एट टाइम्स उसकी कलर स्कीम अजीब हो जाती है, एट टाइम्स उसका बैकग्राउंड ऐसा बन जाता है जो बैकग्राउंड ही प्रोमिनेंट रहता है, जो टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट नहीं हो पाता। आपको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ज़हन में रखना है इसके लिए कि मेरा मकसद, मैं पावर पॉइंट बना रहा हूँ या कोई वर्ड फाइल दिखा रहा हूँ या कुछ भी दिखा रहा हूँ, मेरा मकसद उस कंटेंट पे फोकस्ड रहना है जो कंटेंट मैं पढ़ाना चाहता हूँ। इसके अलावा तीसरी कोई भी चीज़ होगी तो वो एक डिस्ट्रैक्टर है। मसलन कि मैं फर्ज करें स्लाइड्स मैंने देखी हैं जिसमें ना लफ्ज कोई इधर से जंप लगाते हुए स्लाइड पे अपीयर होते हैं, कोई उधर से जंप लगाते हुए आते हैं, कोई फेड हो जाते हैं फिर सामने नजर आने लगते हैं। लफ्जों का, सेंटेंसेस का अपीयर होने की ट्रांजिशंस जो हैं वो लोगों ने ऐसी बनाई होती हैं कि देखने वाले की तवज्जो उस ट्रांजिशन पे तो जाती है लेकिन उसके अंदर लिखे हुए कंटेंट पे तवज्जो नहीं होती। ये चीजें डिस्ट्रैक्टर्स हैं। यानी डिस्ट्रैक्टर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मेरा असल मकसद था उससे तवज्जो हटा देती हैं और जिस बात पे मैं बात करना चाह रहा था उस पे उसकी तवज्जो कम हो जाती है। सो इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप बनाएं, सिंपल बैकग्राउंड की स्लाइड्स हों और कंटेंट सिर्फ उतना लिखें जितना आपको याद आ जाए कि आपने इस पॉइंट से क्या डिस्कशन करनी थी और लोगों को ये पता चल जाए कि जब बाद में वो देखेंगे तो ये पॉइंट्स उनके रेफरेंसेस हैं जिनसे उनको ये समझ आना है कि हमने पढ़ा क्या था, हमने उसको आगे जाके करना क्या है, ये सिर्फ समझ आना चाहिए। जो स्लाइड्स हैं ये नोट्स का ऑल्टरनेट बन जाएंगी, इस पे तवज्जो नहीं करनी चाहिए। स्लाइड रीडिंग जो है ये आपका पर्पस नहीं होना चाहिए स्लाइड्स बनाने का, ना ही इस पे से रीडिंग करनी चाहिए कभी। ठीक है, अभी आप ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर लें, आप टेक्स्ट लिखें तो बहुत छोटा टेक्स्ट लिखें। डिस्ट्रैक्शंस जो मैंने कहा, ये जो ट्रांजिशन ऑफ स्लाइड्स है और फॉर्मेट्स और फॉन्ट की सिलेक्शन है, इन चीज़ों को सादा रखिए, ट्रांजिशंस को सिंपल रखें, कलर्स का इस्तेमाल मीनिंगफुली करें, कलर्स प्रोमिनेंट होने चाहिए और नज़र आने चाहिए, पढ़ने जाने चाहिए। मैंने एट टाइम्स देखा है लोग येलो कलर में लिखा होता है वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, पता ही नहीं चलता क्या लिखा हुआ। इतने छोटे फॉन्ट साइज में लिखा होता है, टेक्स्ट भरा होता है बहुत छोटे फॉन्ट साइज में कि पार्टिसिपेंट से पढ़ा ही नहीं जाता। तो उस टेक्स्ट का लिखना या ना लिखना क्या फ़ायदा रखता है। फिर ऐसी स्लाइड्स बनाई होती हैं जिनको वो खुद ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कह के आगे ले जाते हैं कि ये स्लाइड, ये इसको मैं स्किप करता हूँ, अगली बात करते हैं, ये आप बाद में पढ़। अगर उन्होंने बाद में ही पढ़ना था तो आपको स्लाइड बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरह की बातों को कॉन्शियसली सोचना है कि आपकी जो ऑडियो विजुअल अपील है ना वो कायम रहनी चाहिए, आपका कंटेंट जिस पर्पस से बना था वो पर्पस सर्व होता रहना चाहिए। ये जो 6th पॉइंट है ना जी, ये सिर्फ ऑनलाइन टीचर्स के लिए नहीं है, ये तमाम तरह की टीचिंग के लिए ज़रूरी है कि मैं जब भी कोई कोर्स क्रिएट करता हूँ तो बहुत सारी बातें जो मेरे जहन में होती हैं मैं बगैर बताए स्टूडेंट को ये सोच लेता हूँ कि ये उसको भी पता ही होंगी। मसलन आप कोर्स पढ़ना शुरू हुए हैं तो मैं आपकी रोज़ जो क्लासरूम डिस्कशन है मैं इसमें से आपके बारे में क्या इन्फर करता हूँ। क्लास पार्टिसिपेशन के मैंने नंबर रख दिए हैं लेकिन मैं ये बताता नहीं हूँ कि क्लास पार्टिसिपेशन से मेरी मुराद क्या है। नतीजा ये होता है कि हर बच्चा जो उसको पढ़ता है कि क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर हैं, वो अपने तरीके से रोज़ अपनी प्रेजेंस को बताने की कोशिश करता है। जैसे उसको लग रहा होता है ना कि इस तरह करूंगा तो मेरी प्रेजेंस नजर आएगी और मेरे नंबर बढ़ेंगे, तो वो काम शुरू कर देता है। अगर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं कि क्लास प्रेजेंस से मेरी मुराद आपकी या पार्टिसिपेशन से मेरी मुराद आपकी ये है कि आपका बताया हुआ पॉइंट हमें क्लास के अंदर होने वाली डिस्कशन को समझने में हेल्प करता हो, आपके दोस्तों को हेल्प करता हो, आपकी उस चीज़ के बारे में व्यूज़, आपका स्टैंड पॉइंट क्लैरिफाई करता हो, तो मैं इसको पार्टिसिपेशन कहूँगा। सवाल बराए सवाल पूछ लेना पार्टिसिपेशन नहीं है, लोगों की बातों पे तनकीद करते जाना ये पार्टिसिपेशन नहीं है, अपनी सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश करना दूसरों के मुकाबले में ये पार्टिसिपेशन नहीं कहलाती। तो जब मैं
ये बातें उनको क्लैरिटी से नहीं बताता कि मेरे कोर्स के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ कामों का मतलब क्या है और मैं उनसे तवक्को क्या करता हूँ, तो वो फिर अपनी अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशंस करके अपने अपने तरीके से एक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जो एक्ट इत्तफाकन मेरी एक्सपेक्टेशन से मिल जाता है तो मैं उनको अच्छा स्कोर दे देता हूँ, अदरवाइज मैं उसको वैल्यू नहीं करता। ये हर स्टूडेंट का राइट है कि उसको पता हो कि इस कोर्स के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, मैं किन बातों को वैल्यू करूंगा, किन को डिस्क्रेडिट करूंगा, अगर उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है तो उन्हें क्या क्या काम करने चाहिए, मेरे पास यार्ड स्टिक कौन सी है जिस पे मैं लोगों को मेजर करता हूँ, ये उन्हें समझ आना चाहिए। ये ऑनलाइन टीचिंग का जी मेरे ख्याल में जो जितने पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, लर्निंग एक्टिविटीज को स्कैफोल्ड करना। मेरा टास्क अभी ये था कि स्टूडेंट को मैंने एक प्रोजेक्ट वर्क दिया, उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे जमा करानी है। अब उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जमा कराने में जब वो ऑनलाइन शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है वो उनकी टाइपिंग स्पीड है, फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसी तरह उस डॉक्यूमेंट को हैंडल करना है, सेव करना, प्लेस करना, अपलोड करना, चीज़ों को डाउनलोड करना, मुख्तलिफ सोर्सेज को एक्सेस करना, ये उसकी पेरिफेरल चीज़ें हैं, लेकिन ये पेरिफेरल चीज़ें उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बनने में हेल्प करती हैं। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि जब मैंने प्रोजेक्ट वर्क दिया तो वो प्रोजेक्ट करेगा और रिपोर्ट लिख देगा, और रिपोर्ट लिखने के अंदर जितनी स्किल्स इन्वॉल्व हैं वो उसको आती हैं, मैं ये एज्यूम करता हूँ, जबकि वो नहीं आती होती। अब मैंने एक अच्छा काम कर लिया, लेकिन मैं इस वजह से आप तक पहुंचा नहीं सका उतनी अच्छी शक्ल में, क्योंकि मुझे उसको करने के लिए जो स्किल्स चाहिए थी वो नहीं आती थी। मसलन कंप्यूटर का यूज़ नहीं आता था, वर्ड का डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना नहीं आता था, एक्सेल शीट पे फार्मूले लगाने नहीं आते थे, ये मुझे मसाइल थे। एक ऑनलाइन टीचर का ये जॉब है कि मैंने इन मेन टास्क को तो करवाना ही है, उनसे जो रिलेटेड टास्क हैं उनके अंदर इतनी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है कि उनकी वजह से उनका मेन काम इफेक्ट ना होता हो। अगर किसी बच्चे को टाइपिंग में दिक्कत होती है तो ये मेरा जॉब है कि मैं उसको बताऊं अपने पेज के ऊपर कि अगर आप टाइप नहीं कर सकते तो फलां सॉफ्टवेयर है जो आप बोलते जाएंगे तो वो आपको टाइप कर देगा सारा, और उसके टाइप में मटेरियल को बाद में एकदम पढ़ के तो ठीक कर देना। अगर किसी की टाइपिंग स्पीड बुरी है तो ये आंसर है उसका। इसी तरह अगर आपको किसी जगह से इमेज इंपोर्ट करना है अपने वर्ड फाइल के अंदर तो उसका तरीका क्या हो सकता है। अगर मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर लोगों को टाइपिंग की स्पीड, स्पेलिंग का चेक होना, लोगों के लाइंस के दरमियान स्पेसिंग, और किसी और फाइल से यहाँ पे वीडियो एम्बेड करना, पिक्चर्स इंपोर्ट करना, ये स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मुझे चाहिए कि मैं इन स्किल्स के ऊपर उनको एक साइड लाइन हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करूं। मसलन जहां मैं प्रोजेक्ट फाइल का टेम्पलेट रखूं तो साथ लिंक बना दूं कि अगर आप बोल के आप अपनी ऑडियो के ज़रिए से टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप इस साइट पे जाके गाइडलाइंस देख सकते हैं। कोई इमेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत है तो ये तरीक़ाकार वहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि साथ साथ उनकी जो पेरिफेरल स्किल्स हैं उनके अंदर उनकी एक्सपर्टीज बनती चली जाए। और ये एक वन टाइम एक्टिविटी है, जनरली जब एक दफ़ा कोई स्टूडेंट इसके थ्रू हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम उसको वो वाली दिक्कतें नहीं होती। सो जितनी लर्निंग एक्टिविटीज़ मैं डिज़ाइन करूँ, हर एक्टिविटी के अंदर एंटीसिपेट करूं कि कौन कौन सी स्किल्स चाहिए जो कि डायरेक्ट इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन स्किल्स के बगैर इस कोर्स में इफेक्ट होगी उनकी परफॉर्मेंस, उनके ऊपर मैं गाइडलाइंस या लिंक्स ऐसे दे दूं जहां से वो गाइडलाइन ले सकते हो। मसलन फाइल अपलोड करनी है तो फाइल का साइज बड़ा है, फाइल के साइज को छोटा करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर मुझे अपलोडिंग का लिंक दिया हुआ है तो अपलोडिंग की इंस्ट्रक्शंस और अपलोडेड फाइल का फॉर्मेट बदलना, साइज छोटा करना, वो तो कैसे कर सकते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन साइट पे लिख देनी चाहिए, ताकि उनकी वो वाली स्किल्स भी साथ साथ डेवलप होती जाएं। मैं क्योंकि हर वक्त उनके सामने नहीं बैठा हुआ, in order to explain that whatever they want to do, what kind of skills are required, and even after having those skills, if they're not able to do that, तो what kind of support they need from me, तो मुझे चाहिए कि I should
गिव एग्जांपल्स ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मैं समझता हूँ कि अभी भी कोई 50% स्टूडेंट जो है वो फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते फाइल की APA के मुताबिक। तो मुझे एक वर्ड की माइक्रो फाइल बनानी चाहिए, और ये मिलती हैं बनी बनाई, नेट पे अवेलेबल है। उस माइक्रो फाइल को मैं अपलोड कर दूं कि आप जब अपनी असाइनमेंट पूरी कर लें तो जहाँ पे भी टाइप किया हुआ है वहाँ से आप इंट्रोडक्शन को कॉपी करके इस फाइल में इंट्रोडक्शन के हेडिंग के नीचे पेस्ट करें। तो जब वो पेस्ट करेगा तो वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है उसकी। ये वर्ड की माइक्रो फाइल्स इस तरह की आपको बेशुमार नेट पे मिल जाती हैं। तो मुझे चाहिए कि मैं उनको एज एन एग्जांपल वहाँ रख दूँ और ऐसे टेम्पलेट्स बना दूँ जिन टेम्पलेट्स में उनकी एनर्जी उन कामों पे ज़ाया ना हो जो कि एक्चुअली उस कोर्स का टारगेट नहीं है, तो उनका काम आसान से आसान होता चला जाए। मुझे हर एक स्टेप के ऊपर एग्जांपल्स, टेम्पलेट्स, डेमोज बना के लगाते जाना चाहिए, और जूं आप इसके अंदर इन होते जाएंगे तो मुमकिन अगले 2-3 सालों में ऐसा वक्त हो कि आपको ये टेम्पलेट्स रेलेवेंट हो जाएं, लोग ये सीख जाएं, तो फिर आप उनको हटा दीजिएगा। लेकिन एज ए बिगिनर टीचर एंड एज ए बिगिनर स्टूडेंट इसको ये ज़रूरी है। क्लास को इनवाइटिंग स्पेस बनाना, ये जनरल कल्चर है। मैं कम से कम जब से पढ़ता आ रहा हूँ स्कूल से लेके अब तक, तो मुझे अपनी क्लासों में, और ख़ास तौर पे स्कूल और कॉलेजेस तो खैर थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं स्कूल्स की हद तक, मुझे हमेशा से क्लासरूम एक जेल की तरह से लगता है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी इनवाइटिंग या प्लेजेंट स्पेस नहीं नज़र आया जहाँ पे मेरा दिल चाहता हो कि मैं जाके बैठूं, मेरा दिल चाहता हो कि मैं इसमें वक्त गुजारूं। हाँ, मैं पढ़ने के लिए ज़रूर जाता हूँ, लेकिन उसके बाद इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ नहीं होता। ऑनलाइन में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आप लोगों की फिजिकल प्रेजेंस को बाय फोर्स इंश्योर कर लेते थे फेस टू फेस में। यहाँ आप लोगों की प्रेजेंस को इंश्योर करके भी उन्हें एंगेज नहीं रख सकते जब तक ये इनवाइटिंग स्पेस ना हो, ये मज़ेदार उनके लिए एक प्लेजेंट जगह ना बने। वो मैं कैसे बना सकता हूँ? फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं एक कोर्स पेज बनाया जिसमें मेरे पास अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, और मुझे ये अंदाज़ा है कि यार ये लोग आजकल फ़र्ज़ कर लें कोई क्रिकेट सीरीज़ चल रही है मुल्क में, तो ये वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है लोगों में क्रिकेट देखने का। तो अगर मैं अपने कोर्स पेज के टॉप पे एक स्कोर बोर्ड लिंक लगा दूं, यानी जब भी आप यहाँ आएंगे तो आप फॉलो कर सकते हैं कि आज क्रिकेट में क्या हो रहा है, आप उसका, और इस शक्ल में लगाऊं जो डिस्ट्रैक्टर का काम ना करता हो। यानी वहाँ पे वीडियो ना चलनी शुरू हो जाए कि मैं बातें कर रहा हूँ, लोग अपना मैच देख रहे हैं, ये नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर वो उसके प्रॉम्प्ट्स लेना चाहते हैं तो ले लें। और इसी तरह बच्चों के अपने ग्रुप के, अपने एज ग्रुप जिसको पढ़ा रहा हूँ उसके इंटरेस्ट को देखते हुए वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लिंक दे दूँ अपने कोर्स पेज के ऊपर जिनके शौक में वो उस पेज पे आया करें, और जब वो उस पेज पे आए तो जहां उनके शौक का काम लिंक हुआ है वहीं पे जो मैं काम कराना चाहता हूँ वो भी अपीयर होना शुरू होता हो, ताकि वो आए तो उसको पता चले अच्छा ये सर ने टास्क लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चलो ये भी देखे और साथ वो टास्क भी कर दे। अच्छा, इसी तरह एक ऐसा स्पेस होना चाहिए क्लासरूम मेरा जिसमें किसी को मैं डीमोरलाइज ना करूं। मतलब स्टूडेंट जो है वो मुझसे नॉनसेंस से नॉनसेंस चीज पूछ सकता है, लेकिन मेरा जवाब नॉनसेंस नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट जो है वो मुझसे एक ही बात 25 दफ़ा पूछ सकता है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ पहले भी, लेकिन वो 25वीं दफ़ा भी पूछे तो मेरा रिस्पांस ये नहीं हो सकता कि अभी मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता। मेरा जवाब उस पर यही बनता है कि मैं उसे कहूँ कि ये बात जो तुमने अब पूछी है ये देखनी है, तो मैं फलाने वक्त फलान जगह इसको मैंने लिंक दे दूँ कि यहाँ मैंने जवाब दिया था, अब ये सुन लो। अगर इससे भी तुम्हें समझना आए तो यू कैन पोस्ट इट अगेन, आई कैन टॉक टू यू फ्रॉम दिस आवर टू दिस आवर। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से लाइव चैट कर सकते हैं। यानी उनको हमेशा ये लगे कि आपका कोर्स पेज जो है वो सोर्स ऑफ सॉल्यूशन है, वो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, सोर्स ऑफ डीमोटिवेशन नहीं है, सोर्स ऑफ एंगेजमेंट है, सोर्स ऑफ डिसएंगेजमेंट नहीं है। लोग वहाँ आए तो अपनी उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उसको वहाँ पे महफूज पाए। ये ना हो कि उसको लगे कि अच्छा मैंने को बात कर दी तो ये तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जानी है।
इस तरह से आप अपने कोर्सेज को लोगों के लिए इनवाइटिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सबसे ही इम्पॉर्टेंट ये आखिरी पॉइंट है जी, हमारे यहाँ ये एक कल्चर है कि मुझे लोगों ने कहा कि यू शुड शिफ्ट टू ऑनलाइन टीचिंग, तो मैं परफेक्शन की तलाश में लग जाता हूँ। मैं जिस दिन तक मेरा ड्रेस अच्छा नहीं होगा, जिस वक्त तक मेरे पास कंप्यूटर आला क्वालिटी का नहीं होगा, इंटरनेट ज़बरदस्त नहीं होगा, मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं होगी, जैसे मैं जहन में एक परफेक्ट चीज़ को सोचता हूँ, तो मैं इसको शुरू ही नहीं करूँगा। ऐसा कभी भी ज़िंदगी में नहीं हुआ कि मैं किसी चीज़ को प्लान करूं, अपनी तरफ से परफेक्ट प्लान करूं, और जिस दिन मैं उसको लॉन्च करूं तो वो उतनी ही परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए जैसे मैंने सोचा था। प्रॉब्लम्स होते हैं, और जब तक मैं उस काम में डलता नहीं हूं तब तक मैं उसके उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी नहीं कर सकता। मुझे चाहिए कि मैं उसकी एक बॉटम लाइन इंश्योर करूं, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को इंश्योर करूं, एंड आई जस्ट जंप इनटू दैट, and then with the passage of time, with every mistake I make, I will learn and then move towards perfection, then move towards excellence। ठीक है, सो हमें आपको आज कल परसों किसी ट्रेनिंग का, किसी परफेक्शन का इंतजार नहीं करना। जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा, get into a course page and start teaching। और अगर आज आपसे कुछ 10 गलतियां भी हो गई हैं तो that does not matter, that is not going to turn this world upside down। कुछ नहीं होता इससे, ना दुनिया आपको देख के क्रिटिसाइज कर रही है। आप शुरू करिए। हाँ, खराबी उस दिन होगी जिस दिन मैंने क्लास पढ़ाई और मुझे नजर आया कि यार ये काम इससे बेहतर हो सकता था, और मैं नेक्स्ट डे उसको उससे बेहतर ना करूं, तो ये मेरी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है, ये खराबी है, ये नहीं मुझे करनी। हाँ, आज मैंने 10 गलतियां की हैं और मुझे समझ आई कि इनको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, तो उनमें से 2 भी मैं नेक्स्ट डे ठीक कर लूंगा, फिर एक नेक्स्ट डे ठीक कर लूंगा। तो ये मेरे ख्याल में यही कोर्स ऑफ लर्निंग है, यही कोर्स ऑफ लर्निंग इन द सेंस कि मुझे आर्ट ऑफ टीचिंग, जो ऑनलाइन टीचिंग सीखना है, ये उसका तरीका इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। सो मुझे शुरू करना चाहिए। यू आर ऑल वंडरफुल टीचर्स इन क्लासरूम, फेस टू फेस टीचिंग के आप बड़े अच्छे टीचर्स हैं। जो टीचर फेस टू फेस टीचिंग में अच्छा था, ये मुमकिन नहीं कि वो ऑनलाइन टीचिंग में अच्छा ना हो सके, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग तो वही है। अगर मेरी बात वहाँ लोगों को समझ आती है तो मेरी बात यहाँ पे भी समझ आएगी। जो प्रॉब्लम्स छोटे मोटे मुझे टेक्नोलॉजी रिलेटेड या इस ट्रांजिशन रिलेटेड जो नज़र आएंगे, या जो एक्शंस मैं फेस टू फेस में करता था यहाँ थोड़े बदल के करने पड़ेंगे, तो वो तब तक मैं नहीं सीख सकता जब तक मैं उसमें पढ़ता नहीं हूँ। सो लिहाजा मुझे उसके अंदर एंटर होना चाहिए विदाउट एनी फियर, ट्राई टू एंजॉय इट। और अगर आपसे गलती हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस गलती को अगली दफ़ा मैं ठीक कर लूँगा, अगली दफ़ा नहीं तो उससे अगली दफ़ा ठीक कर लूँगा। लेकिन मैं जब तक एंटर नहीं होऊंगा और ये इस चक्कर में रहूँगा कि पहले मैं परफेक्शन की मैयार पे उतरूँ और फिर शुरू करूँ, तो फिर ये कभी शुरू नहीं होगा जी। सो आई सपोज आई विल स्टॉप हेयर, आई हैव टॉक्ड अ लॉट। अगर आप में से इन 3 हिस्सों के बारे में जो मैंने आपसे शेयर किए, कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, कोई पॉइंट है, कोई एक्सपीरियंस है विच यू वांट टू शेयर विद अस, तो यू आर मोर देन वेलकम। और प्लीज अपना अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें मोटिवेट किया कि हम ऑनलाइन टीचिंग जो है उसको अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में इनकॉर्पोरेट करें। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे कि जो हमारे लिए, मेरे लिए नए थे, और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने उनको वजाहत की। लेकिन HEC ने ये जो प्रोग्राम हमारे लिए डिज़ाइन किया है, इसके पीछे जो बुनियादी उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हम IT लिटरेट हैं। अनफॉर्चुनेटली IT लिटरेट हम लोग नहीं हैं। तो उससे पहले जो है, जो मॉड्यूल्स जो हैं वो IT ट्रेनिंग के ऊपर अगर हों, तो फिर इस तरफ अगर आया जाए तो इनकी एफिकेसी को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से इंस्पायर किया, एंड वी विल ट्राई टू incorporate all your suggestions and begin in everyday teaching. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया जी। जो आपने निशानदेही की, इसी पे अगले सेशंस हैं जिसमें हमारे दूसरे दोस्त जो हैं वो आपको ये
कोशिश करेंगे कि जो IT रिलेटेड हेल्प वो आपकी कर सकें, वो उसके आपको तरीके समझाएं और सोर्सेज बताएं कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। आई होप कि यू विल फाइंड द रिमेनिंग सेशंस वेरी यूजफुल इन द कॉन्टेक्स्ट जो आपने मेंशन किया, और वो बहुत अहम बात है। थैंक यू सर। एग्जैक्टली डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे ये चूँकि आज की आपकी ट्रेनिंग का पहला सेशन है, इसमें डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में आपको ऑनलाइन टीचर के ट्रेड्स और जो टूल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं उनका एक इंट्रोडक्शन दिया है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हमारे अगले जो सेशंस हैं उसमें हम 2 बल्कि 3 सेशन ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली इसलिए ही इसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, इसको ही मद्देनजर रख के कि जो आप लोगों को जो टूल्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल क्लासरूम, जूम और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके बारे में डिटेल के साथ बताया जाए कि वो उसको यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग का हिस्सा होंगी जी। अगर किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें सारे समझाए हैं। जितने भी हम लोग अब क्लासेस लेते रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो आज आपने समझाए हैं तो वो हमें क्लियर हो गए हैं। तो वाकई ये बहुत अच्छा एक आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो इसके लिए मैं इंतहाई आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आइंदा भी जितने भी मैं करती रहूंगी, जितने भी सेशन होंगे वो अटेंड करूंगी, तो इंशाल्लाह ताला उससे मजीद फायदा होगा। बहुत शुक्रिया सर। जी वी आर हैप्पी जी, कि आई एम वेरी प्लीज्ड कि आपको ये चीज़ें यूजफुल लगी और ये अल्लाह ताला आपके काम में इससे बरकत डाले इंशाल्लाह ताला सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी किसी और दोस्त को कुछ ऐड करना है या कोई सवाल पूछना है तो प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। पहली चीज़ें तो मेरे तजर्बे में थी कि हमें कुछ ऑनलाइन क्लासेस पढ़ानी पड़ी, लेकिन अब आपने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हमारी उन खामियों को भी हाईलाइट किया जो हम करते हैं यूजली। तो अब एक बड़े अच्छे तरीके से हम इसको लेकर जा सकते हैं। सर एक चीज़ बड़ी अहम है इसमें, वो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये कि उस्ताद बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे आपने बताया उसका लिखने का काम, इंटरनेट पे जाए वो लिखे ढेर सारी चीज़ें। अगर उसने पेपर ही बनाना है 50 मार्क्स का MCQs तो वो भी लिखेगा, फिर एक एक वो चॉइस देगा। क्या ये जो मैनेजमेंट लर्निंग सिस्टम्स हैं डिफरेंट आपने जो बताए हैं, ये कुछ ईज करते हैं, उसमें कुछ आसानी करते हैं उस्ताद के लिए? हाँ जी, देखिए जितनी भी LMS है ना, ये आपके लिए कंटेंट कोई नहीं डेवलप कर सकते। मतलब अगर असेसमेंट मैंने बनानी है तो वो मैंने ही बनानी है। हाँ, इनका एक एडवांटेज ये है कि जब आप ओवर द पीरियड जो कुछ भी इस पे करते हैं वो एज ए डाटा बैंक सेव होता चला जाता है। आप फिर आइटरेटिवली उन्हीं को आने वाले सेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी बैंक में से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो इसके अंदर सेव हुई होती हैं। मसलन आप कोई लेक्चर देते हैं ना जी, वो रिकॉर्ड हो जाता है। आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को सुन के अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मुझे इसमें से क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके कौन से क्लिप्स आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आप उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद इट इज़ क्वाइट डिमांडिंग थिंग कि मैं ये सारा कुछ एक दफ़ा तो करके इसके ऊपर सेव करूं डेटाबेस के अंदर, और फिर उसके बाद आने वाले दिनों में शायद थोड़ा वर्कलोड रिलेटिवली कम हो जाता है। लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है सर कि फेस टू फेस टीचिंग के मुकाबले में इसका वर्कलोड हमेशा ज्यादा ही रहना है, इस पे काम राइट। अब मिनिमाइज किए जा सकते हैं, जैसे आपने फरमाया कि एक दफा बंदा उसका वो बैंक बन जाए या एक दो दफा क्लासेस पढ़ा ले तो उसके बाद थोड़ा बंदा उसी को यूटिलाइज कर लेती। जी जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। मैंने पहली ओपन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की बहुत अच्छी मतलब स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन यह सर अगर इसमें एक ऑप्शन दे दी जाए कि आपके जो ये लेक्चर हैं ये रिकॉर्डेड हो जाएं तो रिकॉर्ड की ऑप्शन नहीं आ रही थी, इसका कुछ हो सकता है सर? मेरा ख्याल है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग्स होती हैं।
डॉक्टर साहब मैं तो इसको रिस्पॉन्ड कर दूं। जी जी जी, ये जो हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगी। और जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे भी हम इसको रखते हैं। आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको लाइव सुन भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर फॉर सच इंफॉर्मेशन। जी आसिफ साहब, एम आई ऑडिबल सर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम ताहिर अदरीस है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फुलरवान में जर्नलिज्म का लेक्चरर हूँ। सर आपकी सबसे पहले तो इस चीज को मैं एडमिट करना चाहूँगा। थैंक यू। जी जी एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोलिए ताहिर सर। जी अच्छा, मैं बात करना चाह रहा था, मैं जर्नलिज्म मैथ कम्युनिकेशन जो है उसका लेक्चरर हूँ और मैं इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ और इस चीज़ को लेकर चलता रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस को। लेकिन मेरी पोस्टिंग है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फुलरवान में। ये थोड़ा सा जो है इस तरह का इलाका है जहाँ पे सिग्नल्स का या इंटरनेट का इशू मौजूद है। एक तो ये बात मैं आपको करना चाहूँगा। इसी से लिंक दूसरी बात ये थी कि हमारी एक थ्योरी पढ़ाई जाती है मीडिया में जिसका नाम है नॉलेज गैप थ्योरी। उसके अंदर ये बताते हैं कि वो इलाके जहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं वहाँ स्टूडेंट्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं लर्निंग की। तो क्या ये इंटरनेट लर्निंग की तरफ जो हम जा रहे हैं उसके नतीजे में वो स्टूडेंट्स जो कि शहरों में रहते हैं या जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज मौजूद हैं या इजी एक्सेस है टेक्नोलॉजी की या जिनकी ऑलरेडी जो है टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो ज्यादा सीख सकेंगे। और वो बच्चे जो ऑलरेडी इस चीज से दो चार हैं, इन चीजों से, टेक्नोलॉजी उनके पास कम है या इंटरनेट का इशू है, वो बतदरीज पीछे जाते रहेंगे। क्या इस तरह की सोल्यूशन की तरफ कुछ जा रही है? जी जी ताहिर साहब, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखिए ये बात आपकी ठीक है। इससे जिन मुल्कों में भी डिजिटल डिवाइड ज़्यादा है ना, वहाँ पे ये फर्दर डिवाइड का ज़रिया बन सकता है। ये बात मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ, काफ़ी एलेबोरेटिवली बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन जो मैं अभी बोलूँगा ये सारा प्री मेच्योर इन द सेंस के अगले जो सेशंस मैंने जैसे अर्ज किया ना, आईटी के जो दोस्त हैं ना इसके अंदर, दे आर वेरी गुड एक्सपर्ट्स ऑफ दीज थिंग। ये जो डिजिटल डिवाइड है और इस डिजिटल डिवाइड का रिजॉल्व करने में एज ए टीचर मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसके बारे में आगे उन्होंने रास्ते सोचे हुए और टेक्निक्स मौजूद हैं, लोग करते हैं इसका हल। जो डिजिटल हीट मैप है ना इस मुल्क का, अगर हमने टेलीकॉम इदारों से जो लिया मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में, तो उसके अंदर मेन जगहों से हट के जब भी आप थोड़ा सा ऑफ रोड होते हैं ना, ऑफ द मेन ट्रैक होते हैं, तो ये इवन बड़े बड़े शहरों में भी आपकी कनेक्टिविटी का इशू है। इसका हल बुनियादी तौर पे तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी एक्सेस को यूनिफॉर्म करे। वो उसमें वक्त लगेगा और वो कर भी रहे हैं। मीनवाइल हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसे प्रोवाइडर्स का यूज़ करें जो उस पर्टिकुलर इलाके में ज़्यादा प्रोमिनेंट है या ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी देते हैं। मसलन आप गिलगित बिल्तिस्तान चले जाएं तो SCO वहाँ एक मेन प्रोवाइडर है। आप बलूचिस्तान के एरिया में चले जाएं तो टेलीनॉर मेन प्रोवाइडर है। जब भी मैं वहाँ हूँगा ना जी ग्वादर में, और मैं नेट यूज़ कर रहा हूँगा टेलीनॉर की बजाय किसी और प्रोवाइडर का जो वहाँ उस स्ट्रेंथ से मौजूद नहीं है, तो वो गड़बड़ करता है। सो मुझे अगर ये वाली इंफॉर्मेशन जो आपको मेरे दोस्त अगले प्रेजेंटेशंस में देंगे सेशंस में, कि अगर आप कौन से इलाके में हैं तो कौन सा प्रोवाइडर आपके लिए सबसे बेहतर फैसिलिटी दे सकता है। लेकिन आपका पॉइंट फिलहाल इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि हम ऑलरेडी एक डिजिटली डिवाइड कंट्री में रहते हैं, और अगर हम इसको बेहतर नहीं करेंगे तो ये डिजिटल डिवाइड लर्निंग वाले हिस्से को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, और कुछ लोग एडवांटेज में होंगे, कुछ डिसएडवांटेज में होंगे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। सर डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर गुलाम अब्बास मेरा नाम है, गवर्नमेंट कॉलेज भलवाल, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा जी। तो सर ये ताहिर अदरीस साहब दोस्त है मेरे, इन्होंने भी क्वेश्चन किया, लेकिन मेरा इससे भी बेसिक क्वेश्चन है कि ये हमने इससे पहले BS की क्लासेस जो है वो ऑनलाइन जो है ना वो कोई 2 मंथ नहीं है,
तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चे, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक्टिविटी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की आप टीचर्स को ये ट्रेनिंग सेशन भी करवा रहे हैं, तो हमारे बच्चों के पास अगर 50 की क्लास है तो सर मैक्सिमम 9 या 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन है, बाकियों पास एंड्रॉयड फोन की फैसिलिटी नहीं है। तो क्या कोई गवर्नमेंट इस बारे में भी सोच रही है कि अगर ये इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करवानी है तो इसके लिए कोई बच्चों को ये लैपटॉप या कोई इस तरह का एंड्रॉयड फोन या कोई ये फैसिलिटी भी देंगे, या वैसे ये अदरवाइज तो क्योंकि बच्चों के लिए ये एक्टिविटी है, फायदा को नहीं होना? सर इस पे भी थोड़ी देर बाद ये बताएंगे कि ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ये बच्चों के लिए कुछ टैब्स वगैरह और कनेक्टिविटी के सपोर्ट जो है ना वो प्लान कर रही है। उस पर भी डिटेल्स आपको ये ना अगले सेशन में बताएंगे। मैं प्रीमेच्योरली उनकी जगह पे कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो मेरे इल्म में ना हो और वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इस पे बारे में बहरहाल मुझे ये पता है कि पाइपलाइन में है चीज़ें टेलीकॉम कंपनीज के साथ भी और ये टैब्स वगैरह के लिए भी। थैंक यू सर। जी आसिफ साहब, अगर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। बहुत यूजफुल सेशन था और मुझे उम्मीद है कि पार्टिसिपेंट्स ने इस सेशन से काफ़ी सारी नई चीज़ें लर्न भी की होंगी और एक आपने एक चीज़ जो दी है मोटिवेशन भी लोगों को, उससे डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका।